हम एक हाथ दो डायमेंशन में काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते वो। लेकिन वो फर्क है, एक मर्द और औरत में फर्क है। वो रहेगा ना बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऐसा है, वो तो हम कितनी बार एग्री कर चुके हैं हमारी बहसों में। मैंने किसी की सुनी नहीं, मैंने एक बार कमिटमेंट किया है तो मैं करूंगा। वो ना कहना बहुत बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट लाइक, अनमने मन से मत करो। देने वाला वो है, ठीक है। आप अगर ये किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो जाओ कि ये मुझे देने वाला है, उसको छोड़ के, तो फिर तो गलत है ना यार। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी भी आपको इनफ नहीं लगेगी लाइफ। करेक्ट। भगवान ने हमें पृथ्वी पे क्यों भेजा है? क्योंकि यहाँ हवा है, पानी है, फल फ्रूट है, ऑपोजिट सेक्स है, तो एंजॉय। वो वक्त जब आएगा ना आपका, तो आप खुद ही हक्के बक्के रह जाओगे कि यार ये हुआ कैसे हुआ। मैं अपने आप को चोर एक्टर बोलता हूँ हमेशा। मतलब एक वर्ड चुल अच्छे चाहिए हमको, मजा आएगा। हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी, मजा आएगा हमको यार। अच्छा खेलेंगे कूदेंगे, मजा आएगा मतलब। अपना रास्ता निकालो। कुछ हार्ड एंड फास्ट दुनिया में कोई रूल नहीं है कि मेरे को यही फॉलो करना है। गोल्डन सोना, गरम वाला गोल्ड। तब मैं प्लास्टिक था, सोना तो बाद में बनाना मैं। क्या देखती पब्लिक, पावर्ड बाय विजन एक्सप्रेस। Hi everyone, and welcome once again to the final episode, the grand finale of क्या देखती पब्लिक, brought to you by Vision Express and thanks to Balibu for the venue. ग्रैंड फिनाले का एपिसोड जिस तरीके का होना चाहिए और जिस औहदे का हमें गेस्ट चाहिए था, वो आज हमारे बीच में आए हुए हैं. He's a dear friend. He's a brilliant actor. He's got a very good voice. You will know him from other films also, जहाँ पे उन्होंने डबिंग की हुई है काफी कमाल की फिल्मों के लिए. So we have in the house for the grand finale episode Sharad Kelkar. Thank you, Sharad. क्या thank you? So, Sharad, just immediately, na, because we've been talking for a while now. It's been 5-6 years. I've been trying to speak to you about it. The journey in films. तो मैंने शरद को कुछ सालों पहले, कोविड के मेरे ख्याल से जस्ट पहले या उसके बाद, एक फिल्म मेरी सुनाई थी जो मैंने लिखी थी. Because I wanted him in the lead role. I still want him in the lead role. बातें तो होती रहती हैं, बट एट दैट टाइम ऑल्सो आई रिमेंबर ही वॉज सो फोकस्ड. तो आई वॉन्टेड टू आस्क यू शरद, इतनी साल टीवी करने के बाद अमूमन होता क्या है, एक तो एक्टर्स बिकम अ लिटिल सेटल्ड एंड सिक्योर, से यार चल रहा है जो चलने दो, या दूसरी चीज़ होती है कि रिस्क नहीं लेना चाहते. एक तो सेटल भी हैं तो रिस्क कौन ले, एंड सेकेंडली उतनी एस्पिरेशंस सबकी नहीं होती बिकॉज देव ऑलरेडी रीच्ड. बट आई हैव सीन यू, you're not just doing TV, you have always been focused on trying to do good roles, even in films. ऐसा नहीं कि आपने ऐसी फिल्में की है कि भाई कुछ भी आ जाए मगर फिल्म करनी है, वैसा नहीं है. You've been pursuing it. So how did that journey in your mind start? Well, what happens when you have nothing to lose? When I started my journey as an actor, I'm not from any institute or not from theatre that there's some responsibility on my shoulder. Oh, you are passed out from there, or you have done so much of theatre, so you have to prove yourself. I've always been a learner in my life. Correct. And that's my hobby, you can say. I learn from, not just from mediums, but from people, from environment, from, daily behavior of maybe animals also. Correct. So, and there's no limit to learning. Yeah, you can never learn, stops. learn all your life. Yeah. Delivering can stop, but learning can't. Yeah. Understand? People always expect from you that you will deliver. I tell them, let me learn out of this what I'm doing. Correct. So that's a process which I followed. Because when I started my acting career, I was a completely non-actor, a stammerer who couldn't speak a single line. You could you were stammering? Everybody knows now. The whole world knows. नहीं, I didn't know. Till now. अरे मुझे नहीं पता था अब तक. So I used to stammer. Then obviously because good looks तो मेरे पास थे ही पहले से. So I got roles, but ultimately you have to prove yourself. And then I realized कि नहीं, boss, you have to get rid of this. You have to sort this issue. And with friends like you, maybe Hussain came or Prachin is there, and there are a lot of friends, Jaiti and the co-actors, directors. They gave me a lot of support. I think that support also comes from your intent or your behavior, how a person you are. Yeah. So I've always been a very positive guy, irrespective of what issues I had. But I think people liked that and they kept on supporting me, and that's how I overcame this issue. Not fully, but 90-95%. But how did you overcome it? You have to understand, you don't have time and money to go for therapies and all that time. At that time, correct. And there's no guidance to it.
But you have to self-analyze where and what is the issue. So with me, I think, which I discussed in a lot of other podcasts also, for me, I think it was a breathing issue. My breathing pattern was not right. So I corrected that. बट ये पता कैसे चला कि ब्रीदिंग पैटर्न ठीक है, मतलब खुद ही you only feel again, I said I'm a learner, so I have to observe other actors. Why his speech or why his speech is so good, why it sounds very good, what are the correct pauses. Then I realized, and the biggest example is Mr. Bachchan. When you hear him, you like whatever he says, you just want to hear him, right? आवाज है ना, आवाज and the लहजा जो है, जो delivery है. So I used to study what delivery, or maybe Dilip Saab, what delivery he has, but why people like to listen to them, not just watching them. So I realized that their breathing pattern is very accurate. Mr. Bachchan takes pauses when it's needed. Otherwise, he can deliver dialogue in one breath, and then he takes a good big pause. If that is what is required. And he breathes, and then he again delivers. Or maybe in between the sentence also, he breathes sometimes. So why that breathing is there? To get the correct throw, to get the correct flow. So these minute things I observed and start inculcating in my life, that how I can better my speech. And I think that is one of the research, or maybe you can say analyzation, which I had. But yaar, that is so impressive to know कि because somebody beggars are not choosers, boss. You have to do it. सर नीचे रख के Understand? I got married before doing mainstream television. Correct. We both were working, and we both wanted to earn our livelihood and support each other. So if one party is earning and you are sitting at home and sitting in a depression that I can't speak, I can't act, so that will not work. Correct. Understand? So मरता क्या ना करता, मुझे करना ही था. There was no choice for me that चल जाएगा इससे काम. Speech के बिना आप acting नहीं कर सकते. कैसे करोगे? Correct. वो necessity is the mother of invention वाली बात है. So then I had to, and a lot of actors supported me, my directors. They suggested me a lot of small therapies, like pencil रख लो, और कंचे डाल लो, और talk slow, very slow, सब किया. But ultimately then वो ना कि आप खुद को आपको राह ढूंढनी पड़ती है अपनी. तो then I realized कि क्या प्रॉब्लम क्या है. स्लो बोल के जो ठीक हो रहा है थोड़ा सा, बट अभी इसके आगे क्या, हाउ आई कैन बेटर इट. Because हर डायलॉग तो स्लो तो बोला नहीं जा सकता. When I सकता. used to speak slow, people used to tell me that यार तेरा टेक्सचर बहुत अच्छा है वॉइस का. But because you speak so fast, वो टेक्सचर आता ही नहीं है बाहर. अब इसको कैसे करें बेटर. तो then obviously this breathing pattern which helped me a lot, and I worked on it intensely. And then I think the main thing came was Bahubali, when people started recognizing. Yeah, that is what I'm saying. It is so impressive to know that somebody who stammers or used to stammer worked so hard because of circumstances, because of life, जैसे आपने कहा जो भी है. But यार मेहनत है, वो circumstances भी करवाए तो भी मेहनत ही है ना. हाँ, मतलब करनी तो पड़ती है यार. मतलब उसके बिना कोई रास्ते नहीं. मेहनत is a constant thing. Correct. Like you said, learning, your good times are not in your hands, but मेहनत is in your hands. Hard work. So मेरी लाइफ के दो ही रूल हैं यार, एक हार्ड वर्क और एक कंसिस्टेंसी. Correct. You won't believe यार, मैं बहुत लोगों को, जैसे एक्टर्स आते हैं ना, तो मैं बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है यार. बहुत लोगों का एक पैटर्न होता है. सपोज इफ दे आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और फ्रॉम एनी सिटी, कम टू मुंबई टू वर्क, एंड फिर दिवाली की छुट्टियाँ हुई यार, 1 महीना घर होके आते हैं, दिवाली है यार, वहाँ जाके मज़े करेंगे, या होली आ गई हम चले गए, या और कोई फेस्टिवल है, या ऐसे ही मन कर रहा है यार, हम थक गए हैं, कुछ काम नहीं है, लेट्स गो फॉर 2 months, मम्मी के खाना खाएंगे. मैंने वो कभी नहीं किया लाइफ में. यू वोंट बिलीव. चल ठीक है, अभी तो फॉर लास्ट 10 years माई मॉम स्टेज विद मी, आई एम फ्रॉम ग्वालियर, बट फॉर दोज अराउंड गुड 14 years, I can count days when I went to Gwalior. I visited Gwalior, I think 10 to 12 days only. That too, my wedding for 3 days. I sold my house that one day. Not even one day, I went for half day. I went to Delhi, took a flight to Delhi. By train, I went to Gwalior, did the formalities in the evening, took a train again to Delhi and came back. Then I went when my mom got retired. So that time, and then other time I went to bring her to Mumbai.
So these are But these are like necessary dates. ये छोड़ के ये choices नहीं है यहाँ पे, हमें पास luxury. choice नहीं है कि luxury है कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं दोस्तों से मिलने जा ये रहा तो हूँ. मतलब शादी हुई या खुद के घर का So the registration हुआ या consistency correct thing which I was talking कि यार मुझे नहीं पता कि मेरा टाइम कब आएगा. correct. तो लगे रहो. ये उसको पता है. मैं उस टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, मैं उस टाइम पे वहाँ होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. दरवाजा कब खुले दरवाजा तुम्हें कब खुलेगा पता तुम नहीं है दरवाजे के बाद डटे रहो. और मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत लोगों को, से अभी भी फैमिलीज को, दोस्तों को शिकायत होती है, तेरे को शिकायत होती है, तो मिलता नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है. कितनी बार मैं बोलता हूँ. तो मैं जब मुंबई आया, मैं क्या सोच के आया था? मैं काम करने आया हूँ. तो व्हाट शुड बी माय प्रायोरिटी? काम. करेक्ट. सो अगर वो है, ऑब्वियसली वी ऑल ट्राई टू टेक आउट दैट टाइम फॉर फैमिली, फॉर फ्रेंड्स. चाहे वो ऐसे तुम लोग दिन मैच देख रहे थे, सेकंड इनिंग के 16 ओवर हो गए थे, बट स्टिल आई केम देयर. आई रिमेंबर वर्ल्ड कप फाइनल चालू था एंड वी आर ऑल असेंबल्ड टुगेदर. हम लोग सब मैच देख रहे थे. सो वी हैड स्पोकन इन द डे. तो मैंने पूछा था, फर्स्ट इनिंग के बाद आ जाऊंगा, बट शूटिंग चल रही थी. एक तो मेरे को वही सरप्राइजिंग लगा कि यार फर्स्ट इनिंग के बाद कैसे आएगा, मतलब फर्स्ट इनिंग तो खत्म हो जाएगी फिर. तो मैंने बोला चलो ठीक है, सेकंड इनिंग देखेंगे, बट उसमें भी शूट में और काम था, तो वो काम खत्म करके, बट फिर वो आई टुक आउट दैट टाइम कि नहीं यार, ये 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे दोस्तों के लिए है. So you have to manage. 4 घंटा ना मिले, ना but 2 last घंटा का मिले. So एक we दो all घंटा try, मिले. but the main priority is work. मैं किसके लिए? उसको छोड़ के नहीं जाओगे तुम. Then obviously when you graduate a little bit, then you do the work family balance, all that you do. But if you don't have any such kind of responsibility, if you are single, then your concentration has to be on work. मैं घर ही नहीं गया कभी यार. And in fact, whenever I needed my mother or my sister, I called them to Bombay because I was working, I was earning, so I could call them. कि भाई तुम एक काम करो, मेरे यहाँ के रह जाओ. हाँ. Same with my in-laws. मैं I think कानपुर सिर्फ शादी के 20 साल में 2 बार गया हूँ, 2-2 दिन के लिए. मैं नहीं, तो कहावत भी है ना, ससुराल जितना कम जाओ उतनी इज्जत बनी रहती है. But मतलब वो वंस दामाद जी एक बार दिखे. हाँ, प्लीज आप आओ मेरे घर पे रहो, whatever days you want to, and we'll enjoy, we'll have fun at home. So मैं वो अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहता कभी लाइफ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें से कौन सी अच्छी वाली, वो भी चूज करना आपके हाथ में होना चाहिए. करेक्ट. और उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ कोई प्रोजेक्ट में आप करो, उसके बाद वो प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा सेकेंडरी है. है. लेकिन क्या है ना, कंसिस्टेंसी है ना, बहुत जरूरी है. आपको अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. वो बोलते हैं राइट टाइम एट राइट प्लेस एट राइट टाइम. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी ने ऐसे नहीं बोल दिया जाके कि भैया. और वो होने के बाद हम बोलते हैं, मगर आप जो बोल रहे हैं वो होने के पहले कि भाई उसके पहले से मैं इसलिए आया हूँ, मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए. और ये राइट टाइम हो सकता है, ये राइट प्लेस हो सकती है. यू नेवर नो who will knock your door. You don't when he'll knock your door. अभी आप बोलो, आपको फोन आया, सर मैं तुमने होम टाउन में. अच्छा तुम नहीं हो, अच्छा ठीक है शरद तुम नहीं हो, ठीक है हर्षल को ले लेते हैं. So your opportunity is lost. एंड वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है तुम्हें नहीं पता. उससे और दरवाजे खुले, उससे कुछ बन जाए. चांस ना, अंडरस्टैंड. सो वो मेरी लाइफ के मंत्र हैं. तो हार्ड वर्क यार करते रहो, भगवान अगर चाहेगा तो वो टाइम आएगा आपका. एंड बट वो एफर्ट या इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है आपको. एंड वो जैसे स्कैम में बोला ना प्रतीक ने, इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है. तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. आप सड़क पे चलते हो, रिस्क लेते हो कि कब कोई गाड़ी ठोक, पता नहीं ना आपको. यू नेवर नो. इज ऑलवेज रिस्की. तो आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते. यू ओवरकम दैट फियर, ओवरकम दैट इनसिक्योरिटी बाय जस्ट. फियर, आप घर छोड़ के आए हो यार, उससे बड़ा क्या रिस्क है और लाइफ में. आप एक कंफर्ट जोन छोड़ के आके बॉम्बे रह रहे हो, तो उससे बड़ा रिस्क कुछ हो नहीं सकता ना. और आपने ग्वालियर मेरे ख्याल से 2002 2004 ऐसे. 4 जुलाई 2002. अच्छा, यू रिमेंबर दैट डेट? Obviously, I remember the time also. When I reached Bombay, 7:15 in the morning, पंजाब मेल आया था. It's American Independence Day. हाँ, 4 जुलाई एग्जैक्टली. बट मतलब क्या सोच के, कैसे, मतलब यार मैं तो ऐसे ही यार, मतलब आई हैड 2 प्रोफेशनल डिग्रीज. तो पढ़ाई लिखाई बहुत करके आया था, जॉब करता था. सो आई न्यू कि यार कुछ नहीं हुआ तो बेटा कहीं नौकरी होगी तो कर ही लूँगा मैं लाइफ में. और वो एक है ना, कॉन्फिडेंस जरूरी है आपके अंदर. हाँ, कि कुछ ना कुछ ढंग का तो हो ही जाएगा. मैं और मैं कोई थिएटर से नहीं आया था, मैं किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आया था. तो मुझे वो भी नहीं था कि यार ओ आई हैव दिस डिग्री और आई हैव डन थिएटर सो मेनी. मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आई वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. और जो काम मिले कर लो यार. मजदूर टाइप का आदमी था मैं, तो अभी भी वैसा ही हूँ. तो मेरा बहुत प्रैक्टिकल आदमी है लाइफ में. मेरी वाइफ मुझसे कीर्ति बोलती है बहुत बार कि तू बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है. मैंने कहा तो प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए तो प्रैक्टिकल तो होना ही चाहिए. वी आर नॉट लिविंग इन अ ड्रीमी लाइफ. वी कैन क्रिएट आवर ड्रीम्स, वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स, बट वी आर नॉट लिविंग इन दैट. एंड फाइनली यू नीड टू हैव दैट प्रैक्टिकलिटी व्हेन यू आर वर्किंग इन अ इंडस्ट्री लाइक दिस. करना ही पड़ेगा आपको यार, बिकॉज़ 9 to 5 जॉब नहीं है. इनसिक्योरिटीज इसके साथ भी हैं
कभी घर पे बैठते हो, कभी ज्यादा बिजी हो हाँ जाते हो, मतलब सब है। परेशान तो आदमी इसलिए काम नहीं है तो परेशान है, काम ज्यादा है तो परेशान है। हमारी इंडस्ट्री वैसी चलती है ना, हाँ, मगर मतलब ओवर क्या स्ट्रेस चाहते क्या लाइफ डबल में? शिफ्ट करना पड़ रहा है रात को ले। मैं बोला यार ये करना पड़ रहा है, नहीं ठीक है, नहीं, अच्छी मेरा बात है। मेरा मुझे पॉइंट होता है कि यार स्ट्रेस किस बात का है तुम? हाँ, हाथ पैर चल रहे हैं, तबीयत ठीक है, दोस्त का खाना मिल रहा है, correct। छत है। वो राजपाल सर ने एक बार बोला था ना, उनको पूछा था स्ट्रगल के बारे में, बोलते भाई ये स्ट्रगल नहीं है। Struggle नहीं है तो Struggle luxury वो है भाई हाँ, ये। ये लग्जरी है। स्ट्रगल तो वो बोलते हैं ना जिसको, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, somebody who doesn't have an arm, doesn't have a leg, Correct, doesn't have struggle things to वहाँ eat, है, and वो है this- स्ट्रगल। And if you see ना, those people have a smile on their faces. या हमारे चेहरे पे नहीं दिखती है स्माइल, हम हमेशा ऐसे ही अरे यार कभी कभी ना चल वो रहा है। इंसानी फितरत है, लाइक यू आर सेइंग, वो आपका आउटलुक एकदम क्लियर होना Correct, कि हाँ, यार वो ये बहुत ऐसा बहुत है। जरूरी है यार। आई टेल माय ऑल द यंगस्टर्स आल्सो कि बॉस आप खुशकिस्मत हो कि मतलब आज मैं बोलूँ अगर जो एस्पायरिंग एक्टर्स या जिनको शायद कहीं अपने होम टाउन में बैठे होंगे उनको एक्टिंग करनी है, ऐसे करोड़ लोग होंगे, उसमें से कुछ हजार या कुछ सैकड़ों को ये अपॉर्चुनिटी और चांस मिला है। सो यू शुड बी थैंकफुल। या आई थैंक गॉड एवरी डे कि यार मैं वो फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ जिन्हें लोग जानते हैं दुनिया में। और मैं भी ये सोचते होता हूँ ना कि व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग एंड व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट इन इंडिया, करोड़ों लोग सोच रहे हैं कि करना है है वो उसमें से- 11 ही ना। हाँ, नहीं उसमें से भी ना लाखों लोगों में वो दम होता है कि वो अपना होम टाउन वगैरह छोड़ के माँ बाप को समझा के या खुद को समझा के कि मैं कुछ करके दूंगा, ये लाखों लोग सोच के आते हैं। उसमें से हजारों लोग ऑडिशंस और स्ट्रगल देते हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है वो अपॉर्चुनिटी chance। मिलती है, और उसमें से भी 10, 15, 25 सक्सेसफुल हो जाते हैं, और उसमें से फिर 11 खेलते हैं या 11 टीवी पे दिखते हैं एज सुपरस्टार्स, एज द बिगर वंस, एज द एक्टर्स टू बैंक ऑन, टू काउंट ऑन। बट शुरू कहां से होता है ना, वो करोड़ लोगों ने जो सपना देखा है उसमें से सिर्फ वो लाख लोग ही आ पाते हैं। हाँ। अभी भी गांव में लोग हैं कि नहीं मैं एक दिन करूंगा, मगर वो जिगर होना चाहिए, दैट यू हैव टू हैव दैट लॉट ऑफ एग्जांपल्स है, मतलब इतने पंकज है, नवाज है, कहाँ से शुरू किया, बट वो एक और वो आज का नहीं है, इतने सालों से हम देख रहे हैं, मतलब फ्रॉम द टाइम ऑफ देखो वही है ना कि Yesteryears। वो भी एक वजह है यार कि आई टेल यू, मैंने मेरा भी स्ट्रगल है, बट आई टेल यू 4 years फॉर एग्जांपल। हाँ। इट्स नॉट दैट ओवरनाइट somebody called me and अच्छा कि वी वांट टू एक्ट इन अ शो, ऐसा हुआ नहीं किसी आपको से। प्रोजेक्ट मिला इसीलिए आप आए नहीं, आप आए फिर घिसे, फिर कुछ ना घिसे, कुछ फाके मारे, ये किया, Audition वो दिया, किया, ये ऑडिशन हुआ। दिया, धूप में घूमे, बीमार पड़े, पैदल चले, बस में धक्के खाए, ट्रेन में गए, बड़ा पाव खाया, कभी खाना ही नहीं खाया, ये सब करके वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हर एक की लाइफ में टाइम आता है, इट्स नॉट द थिंग व्हिच यू शुड डिस्कस आल्सो, वो अपना अपना फेज है एक लाइफ का, बट दैट इज अ लर्निंग व्हाट आई फील, वो सीखने वाली बात है कि यार अच्छा, तो अभी भी ऐसे सपोज फॉर छोटा एग्जांपल, अगर आपको उस वैसे भूख रहने की आदत है ना, तो समटाइम्स अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट सीन चल रहा है एंड ब्रेक करने का टाइम नहीं है, रिमेंबर दैट टाइम कि यार मैं उस टाइम में वो 6 घंटा मैंने खाना नहीं खाया था, मैं चलते हुए गया था, ये तो यहाँ तो आधे पौने घंटे की बात है, तो ब्रेक लेट हुआ, फर्क ये शॉर्ट के बाद ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो योर माइंडसेट डजंट ट्रबल यू, या यू नो, बिकॉज़ यू सीन डेज आपको पता है आप करोगे, Correct। बट वो चिड़चिड़ करके करोगे या वो पीसफुली करोगे, वो आपके इसमें। सो दोस टाइम्स ना वो आपकी मेमोरीज बन जाती हैं कि यार मैंने ये किया था, तो दैट हेल्प्स यू इन फ्यूचर व्हेन यू आर इन अ बेटर कंडीशन, तो आप वो एडवर्स सिचुएशन के लिए रेडी रहते हो, करेक्ट। है ना। तो वो एक छाते की तरह है, मतलब आपने वो देख लिया अम्ब्रेला अपना एक बड़ा सा कि मैंने ये झेला हुआ है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। और वो आपको मेरे ख्याल से एक्टिंग में भी, परफॉर्मेंसेस में भी 100%, फर्क पड़ता है, बिकॉज़ यू सीन दैट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, सो हाँ, मतलब देखो एक्टिंग इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, मैं बोलता हूँ वो अपना सेल्फ, हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है, जिसको वो प्रोसेस नहीं वो अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है जो फेस पे लेके आता है या अपने क्राफ्ट में लेके आता है। इट्स यू आई कांट डू व्हाट यू आर डूइंग, यू कांट डू व्हाट, बट मे बी आवर एक्सपीरियंसेस आर सेम, हमारी कंडीशन भले सेम रही हो, बट वी कांट एक्ट सिमिलर। करेक्ट, तू अलग करेगा, मैं अलग करूंगा, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस, हमारा परसीव करने का तरीका अलग है, हमारी इंडिविजुअलिटी एक है, हमारे तो वो अलग चैप्टर है जिसको आप अपने एक्सपीरियंस, वो आपके खुद के हैं, है ना, वो आपका संग्रह है ना, उसको आप यूज करते हो। करेक्ट, एंड दैट इज ओनली योर्स, ओनली योर, वो नोबडी कैन टेल यू कि यार तूने वैसा हुआ था इसलिए तू ऐसा कर, वो नहीं हो सकता, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, वो आपको सबकॉन्शियस में रखना पड़ेगा। करेक्ट। या आप किसी को अगर ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये बंदा ऐसा, तो वो मेरा ऑब्जर्वेशन, मैंने कैसे परसीव किया उस आदमी को, मैंने मेरा, तूने कैसे किया वो अलग है। आदमी सेम चीज कर रहा है, आदमी सेम चीज कर रहा है, तो वो तेरा नजरिया और तेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ, मेरे देखने का नजरिया, आपके देखने का, व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट वी अब्सॉर्ब फ्रॉम इट, व्हाट वी यूज, करेक्ट, दैट्स राइट। तो सिचुएशन भले ही सेम हो, लेकिन मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ ना वो अलग है, वो तू कैसे कर रहा है वो अलग है। हाँ, या तो यू वर स्पीकिंग अबाउट हाउ यू गॉट मैरिड, यू एंड कीर्ति गॉट मैरिड बिफोर
हाथी? नहीं, हाथी तो मैं हूँ। नहीं, तो you and Kirti got married before you all were successful television actors. Correct. हाँ, तो वो कहानी है, we did a show in 2004 called आक्रोश, वो कुछ 1-2 एपिसोड के लिए, 3 एपिसोड होंगे मेरे साथ कीर्ति, तो I met her and co-acted, उतना ही। Hi, hello. Then we met after around 7-8 months. हाँ. I think September or something. We shot in January, February, and then we met in September for a show. We both got selected. Plus, we met a couple of times for auditions in the same company. हाँ. Then we decided कि चलो यार कहीं और पिक्चर बांटने जाएंगे. जो था ना उसमें मतलब एक पोर्टफोलियो होता था. 4x6 के फोटोज यहाँ वहाँ नंबर लिख के भेजते थे. तो कभी यहाँ चले गए किसी और के ऑफिस में, अंधेरी आते थे तो मैं आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ, चलो चलते हैं. और भी एक दो दोस्त थे. Used to meet. Then we both got selected in that show. तो अभी उस शो में ऐसा हुआ कि यार हम मिलते रहे रीडिंग्स के लिए या कपड़ों के लिए, जो ट्रायल्स वायल्स. करेक्ट, कॉस्ट्यूम ट्रायल्स. तो लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि दे फाउंड कीर्ति इज वेरी क्यूट एंड वेरी सॉफ्ट. तो वो कॉप का रोल था तो वो सूट नहीं करती, तो शी गॉट डिसहार्टेंड. मैंने मौके पे चौका मारा जैसा हमेशा, तो पता ही है जबान तो अपनी ठीक ठाक ही, हगलाते भले ही है लेकिन जबान ठीक ठाक है. तो मैंने भी बोल दिया यार मैंने 2 डिग्रीज की हैं. मैंने से चाय पी रहे थे, शी वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड बोले आई विल गो बैक टू कानपुर एंड ऑल. अच्छा, शी वाज एट दैट स्टेज कि नहीं हो नहीं रहा है कुछ, तो वापस जा रही है. इतने लीड्स करने के बाद, फ्रॉम कमल टू जय संतोषी माँ टू और भी शोज किए थे उसने, उतना करने के बाद भी जब आपको रिजेक्शन मिलता है ना, तो इट्स अ वेरी डिसहार्टनिंग थिंग. जा रही हूँ मैंने कहा देख, मैंने 2 प्रोफेशनल डिग्रीज कर रखी हैं, कुछ नहीं वो तो नौकरी तो कर ही लूंगा, 25-30 हज़ार कमा लूंगा उस टाइम पे, तो मैं घर चला लोगी तुम. अब ऐसे डालोग लड़का मार देगा. अरे यार, तो मतलब ना. बट व्हाट वी डिड यार, क्या होता है ना, मैं हमेशा मैंने मतलब अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, जैसे आप जवान होते हो धीरे जैसे, तो आपके रिलेशनशिप बनते हैं, आपके अफेयर्स होते हैं. आई वाज ऑलवेज अ मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ थिंग यार, कि मेरे को शादी करनी है. इन योर हेड आल्सो. हाँ मतलब मैं तो मतलब ऐसे जब फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी तब भी मैं घर पे मिलवा दिया, मम्मी आपकी बहू है होने वाली, मतलब मैंने 19 आई थिंक मेरे ख्याल से. Because your mind is going to that. Because you can't get married 19 तो चल रहा है. And the longer we dated, फिर complications हो गए. फिर longer dated complications. तो this time when I met Kirti and this started, we got married in 3 months. From the time you started 3 महीने में शादी सीधे. It's been 21 years. complications हुए बाद में तो handle कर लेंगे, but नहीं करना है तो तेरे से करना है, फिर जिंदगी जी लेंगे. मैं तो वो मतलब वो हूँ, मैं गरम वो होता है ना प्लास्टिक, कैसे भी मोल्ड करना है कर सकते हो, तो मैं तो अपन तो झुक के रह लेता हूँ. गोल्डन सोना, गरम वाला गोल्ड. तब मैं प्लास्टिक था, सोना तो बाद में बनाना मैं. तो सबकी नजरों में प्लास्टिक ही था. तो बट उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि शी एज एक्टर्स क्या होता है ना, आप टेक्नीशियन भी नहीं हो, आपकी डिग्री है मैं मानता हूँ, बट यू हैव कम हियर एज एक्टर्स, ठीक है. यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट, आपके जमा रहे हो पैर, शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट. उसके बीच में to take that step is so courageous for both people, because again वो ये था, you learn from your life. Yes. मेरे पीछे क्या हुआ, ये 2-3 रिलेशनशिप हुए, फिर वो लंबे चले, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं. बेटर है कर लो मतलब, और म्यूचुअली था दोनों का, ऐसा कि नहीं कर लेते हैं. उसमें बड़ा अच्छा इंसिडेंस है. तो आई यूज्ड टू स्टे इन लोखंडवाला, उसका घर मलाड में था, तो शी यूज्ड टू कम समटाइम्स एक बार, और आई यूज्ड टू गो टू हर प्लेस आल्सो. हर ब्रदर न्यू मी, बच्ची से छोटे से उनके भाई के. तो एक बार ऐसे डिनर पे बुलाया मैंने घर पे, खाना खाने आए भैया भाभी और सब लोग, खाना. हाँ फैमिली खाना ना खाया हम लोगों ने. जाने लगे तो उसने बोला कीर्ति को चलो. मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा बाद में. ऐसे कैसे छोड़ दोगे बाद में, बहन है मेरी, मतलब लेके जाऊंगा साथ में. तो ऐसा कुछ चिकचिक नहीं हुई, मतलब ही इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गाय. और ये क्या मतलब हुआ, बट अ सिक्योर एल्डर ब्रदर, ही वुड टॉक बोले चल. मैंने कहा तो क्या करें अभी, बोले शादी कर लोगे तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं, रखो अपने पास में. मैंने ठीक कर लेते हैं. कर ली शादी फिर विद इन फ्यू डेज. दो देन आई टोल्ड माय मदर कि यार योर ड्रीम इज आल्सो देयर कि तुम बड़ी शादी करो. तो दैट इज व्हाई द ग्वालियर शादी हैपेंड, जहाँ वो 3 दिन 4 दिन का फंक्शन हुआ और सब गेस्ट वेस्ट आए. बिकॉज पेरेंट्स का भी सपना होता है यार कि हमारे बेटे की शादी. एंड बाय द टाइम आई सेड कि आई नीड टाइम टू अर्न दैट काइंड ऑफ मनी टू सेलिब्रेट इन अ सर्टेन वे. करेक्ट. तो पैसे कमाए. तो वेडिंग होने के कितने, या शादी यहाँ पे होने के बाद, लीगली शादी होने के बाद कितने महीनों या शायद तो पहले भी लीगली थी, मतलब वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पहली वाली जो कर ली शादी हो गई, अब जो ग्वालियर में फंक्शंस हो गए 6 महीने बाद, 6 मंथ. एंड यू वोंट बिलीव, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में मतलब एक लेडी लक फैक्टर जो है वो कीर्ति, मैं मतलब आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि यार नहीं लगी कौन लेडी लक और कीर्ति है. बिकॉज द डे वी गॉट मैरिड इन ग्वालियर, 3rd June आई रिमेंबर, एंड ऑन 11th
June, I gave audition for Saath Fere. And on 20th or something like that, I started shooting for Sindoor तेरे नाम का for ZTV, where Kirti was working. तो immediately start हो गया काम. And Sindoor became a hit, Saath Fere became a super hit, though it was a cameo, but वो चलता रहा, मैं हीरो बन गया शो का. Because intent was right. करेक्ट. जैसे बता रहा हूँ, साथ फेरे का बहुत अच्छा इंटेंट है, मैंने काफ़ी जगह शेयर भी किया है, बट सो माई रोल वॉज अ कैमियो ऑफ मे बी 2 months इन अ शो. तो पहले से पता है 2 महीने का ही 2 महीने का काम है. आई एम डूइंग सिंदूर ऑन जी टीवी, ये भी जी पे ही है. एंड उसमें मेरा एक दोस्त काम कर रहा था. अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट विद अस नाउ, बट ही वाज डूइंग सिंदूर ऑल्सो एंड ही जॉइंड साथ फेरे ऑल्सो. तो वो साथ फेरे कर रहा था और सिंदूर चल रहा था अच्छा. तो इसू कम मैंने यार मज़ा नहीं आ रहा उस शो में, ऐसा है वैसा है, रेटिंग भी कुछ नहीं है यार, बकवास है, तू भी करने वाला है ना. मैंने कहा हाँ यार. बोला मत कर, कोई मतलब नहीं है यार, यहाँ तेरा चल रहा है बढ़िया, क्यों स्पॉइल कर रहा है वहाँ जाके. मैंने कहा नहीं यार देख, मैंने कमिट कर दिया है, तो करूँगा तो मैं ही, फिर देखा जाएगा यार क्या करना है, देख आएंगे. तो उसने 2-3 बार मुझे बोला. इनफैक्ट ही लेफ्ट द शो. उससे कोई और एक्टर ने वो शो ज्वाइन किया साथ फेरे. मतलब वो इतना ऐसा था कि मेरे को नहीं करने का साथ फेरे. तो जब मेरा रोल शुरू हुआ, द रेटिंग स्टार्टेड इंक्रीजिंग, एंड फिर मैं वो कैमियो से मैं उस शो का हीरो बन गया. So the writers and your correct, your character started getting molded because once you joined and then the ratings started coming up. तो यार इसको फिर और फुटेज दो, इसका कैरेक्टर बढ़ाओ. तो उसमें बड़ी फाइट भी हुई चैनल में, राइटर और चैनल के बीच में, कि क्या करें, मेरी स्टोरी में तो ये विलन है, बट चैनल बोल रहा है यार रेटिंग्स, ट्रिपल रेटिंग हमने कभी देखी नहीं है पिछले 15 साल से, तो वी कैंट लूज दैट. एंड दैट्स हाउ आई बिकेम द हीरो ऑफ द शो. For the channel it was almost like Sharad Kelkar has joined and now the show is picking up right in front of you. I'll tell you, picking up at what rapid speed I'm telling you. It's a study in television. तो वो visible growth जब दिखता है ना, इतना ज़्यादा growth था ना कि वो उस पे discussion नहीं हो सकता. तो तुम आइडिया को रिजेक्ट नहीं कर सकते, फिर वो दिख रहा है तुम्हारे सामने. तो उसमें ये हुआ ना, then I always say कि मेरा intent बहुत right था. मैंने किसी की सुनी नहीं, मैंने एक बार commitment किया है तो मैं करूँगा. खास करके दोस्तों ने बोला, उन्होंने खुद छोड़ दिया शो. Still you continued doing what you're doing. क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बोलने के लिए नहीं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं करूँ या क्यों करूँ. आपने हाँ बोला यार, कर दो, क्या फर्क पड़ेगा. करेक्ट. कब क्या क्लिक हो जाए ना पता नहीं है. And how big a role has, since you're talking so highly of Kirti, and I've met her, she's so well spoken, she's a brilliant, not just a brilliant thinker, but also a very responsible mother. I'm sure she's a great wife, but what is her role been, especially after you've had Kesha? या बस वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था. मतलब आई टेल यू, सो ऑलमोस्ट आई वाज अमंग द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑन टेलीविजन दैट टाइम, 12 के अराउंड. एंड कीर्ति ऑल्सो वाज डूइंग अ शो कॉल्ड छोटी बहू, एंड वी बोथ प्लान्ड अ बेबी, कि चलो प्लान करते हैं. ऑब्वियसली दैट टेक्स टाइम. करेक्ट. सो शी लेफ्ट. मेरे अंदर भी थोड़ा सा था कि यार, बिकॉज रामलीला से कॉल आया एंड आई डिड रामलीला, कि नहीं यार फिल्म तो फिल्म है भाई, मतलब फिल्म करेंगे. तो 2013 ऑलमोस्ट शी क्विट टेलीविजन, आई क्विट टेलीविजन, एंड यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ मनी विच आई वाज अर्निंग इन 15 days दैट आई गॉट फॉर द होल ईयर इन फिल्म्स. पूरे साल भर काम करने के बाद उतना पैसा मिला था, ये 20 दिन में पैसा मिल रहा है टीवी में जो मिलता था. बट ठीक है चलो यार, एक पैशन है. एंड शी सपोर्टेड मी इन एंड आउट ड्यूरिंग the efforts to become parents, or maybe in pregnancy, after delivery. She was there. She was one-sided handling Kesha. So obviously I has to come, but still I have that, feeling that I couldn't do that much what I should have. Nahi kiya, but she, the so change, she's almost handling her husband's a career working also. woman to a mother. Correct. That shift was amazing. I'm Especially because both of you have decided to have a child, and at the same time you're also aspiring to say यार मैं फिल्में करता हूँ. मतलब ऐसा टाइमिंग था ना कि उसने टीवी छोड़ा, पैसे नहीं, ये नहीं, बच्चा, एंड वी वर लाइक, now you want to do films कि मेरे को अभी फिल्म करने की, मैं टीवी नहीं करूँगा, पैसे मिल रहे अलग बात है, अभी मुझे टीवी नहीं करूँगा भाई. तो those 3-4 years, 2015 obviously I did a limited episode series on television. वो करता रहा मैं, but she always, अभी भी मतलब, I think its ratio is, आप देखोगे ना, to handle Kesha, I try my best whatever time I have, but it's still 70-30, 70-30, or maybe 80-20. Even I was just going to say that, because she single-handedly just doing her job, and plus she now never she felt started like coming back to acting. No, but wait, now she again, she and Tina obviously, they've started a company called La Belle Fête, for wedding events or decor. वो भी करना है, वो भी करती है, एंड बिकॉज पैशनेट है दोनों लड़कियाँ.
और vision भी है, बहुत अच्छा काम करते हैं, कीर्ति yeah, है, yeah. तो they both are visionaries, they both are, but वो ये ठीक है, टाइम लगता है, any business it takes time, but वो passion है, वो I can see that, you know, that hunger to prove themselves, तो वो लगे हुए हैं, वो भी कर रहे और हैं. ये it's not required right now. Not required, They could जरूरत just नहीं chill, है. both of them. टीना could हाँ, chill, मतलब कीर्ति chill. could, मतलब क्या ही है यार. क्या कुछ करने की जरूरत नहीं, but again because that passion is there, that creativity is there, वो एक you know independent woman वाला एक है और जज्बा और बहुत अच्छा है. और जो जितना भी कर रहे हैं मैं देखते रहता हूँ, वो लबेल फेट इज भाई वो रात दिन, हाँ, मतलब जा के कहीं मीटिंग्स वीटिंग्स इधर कर रहे हैं, चेन्नई शादी कर रहे हैं, नासिक कर रहे हैं, एंड दे डिलीवरिंग इन सर्टेन बजट्स. वो बहुत डिफिकल्ट है. तो हेड्स ऑफ टू देम है, दे आर हैंडलिंग. मतलब हम बोलते हैं कि चलो हम घर चला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बॉस वो भी कर रहे हैं, वो बच्चे भी पाल रहे हैं, वो घर भी हैंडल कर रहे हैं, इंटीरियर भी देख रहे हैं, चाहे टूट फूट गया है वो भी कर रहे हैं, घर का जो स्टाफ है उनको भी देख रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते बराबरी यार. हमारा उतना बैंडविड्थ ही नहीं है, हमारा वो मल्टीटास्किंग इतना बड़ा नहीं हो सकता. हम एक हाथ 2 डायमेंशन में काम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते. इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो जो फाइनेंसेस है वो भी वही देखती है. क्या बात हाँ, मतलब मेरे को तो बिल्कुल जीरो हूँ मैं तो वो अपने कन्वेंशनल पुराने मेरे अकाउंट में पैसे रहने चाहिए. हाँ, रोकड़ा कितना है अकाउंट में. और शी इज इनटू इन्वेस्टमेंट, शी इज इनटू क्या करना है, कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, EMIs कैसे देनी है, वो सब वो भी देखती है. सो अंडरस्टैंड, मैं वही बोल रहा हूँ कि यू कांट, लाइक इफ यू मेट कीर्ति दैट टाइम एंड नाउ कीर्ति, हाउ अ चाइल्ड यू नो bring changes in you. She is the best example, I think. A very reckless, irresponsible girl, है ना, मतलब चल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चिल कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं. बट वो उम्र भी वो होती है ना. करेक्ट, बट फ्रॉम देयर हम अभी थोड़े वैसे ही हैं कि आज भी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं धूप में, स्किन खराब हो रही है, चलो कोई बात नहीं, आज ही चलो ये कर लेते हैं, पार्टी दे देते हैं, तो लेट नाइट्स कर रहे हैं. बट उसका भी ऐसा हो गया है कि नहीं बॉस, मेरा लाइफ ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जो है, घर, फैमिली, मेरा बिजनेस, वो सेंटर हो गया. तो बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड हाउ दे डू इट. और उस पर से हम लोग क्रिप करते हैं, एंड देन वी रियलाइज, ऑब्वियसली हम क्रिप करते ही हैं, बट लेटर वी रियलाइज कि हम क्यों कर रहे थे क्रिप यार. हमने व्हाट दे आर आस्किंग फॉर, दे आर आस्किंग फॉर द मोस्ट बेसिक थिंग विच इज टाइम. एक ही आप वो जो फ्री टाइम, मतलब होता है ना हर ओन टाइम, कि जहाँ ना फोन हो, ना टेलीविजन हो, ना कोई और मुद्दा हो, यू एंड हर, एंड that priceless time she needs, that's it. But वो भी इतना मुश्किल है मान लिया, गधे हैं हम लोग, गधे हैं लिटरली बता रहा हूँ. वो मगर वो लेकिन वो फर्क है, एक मर्द और औरत में फर्क है. वो रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट ऐसा है. वो तो हम कितनी बार एग्री कर चुके हैं हमारी बहसों में, उसको कुछ नहीं कर सकते उस चीज. बट दैट फेज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज हो सकता था कि आपको फिल्मों में जो आपने किया है, बिकॉज आई रिमेंबर योर जर्नी ऑल्सो, chronologically मुझे याद नहीं होगा, बट आफ्टर यू डिड रामलीला, यू डिड अ लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स, बट दे वर ऑल इंटरस्पर्स्ड. जैसा टीवी में आपको आदत है, रोज उठो, काम पे जाओ, आपका मीटर चालू है, आपका रोल चालू है, डेली आपको पता चल रहा है कि आपका शो कैसे कर रहा है, ये शो खत्म हुआ, दूसरा शो है, तीसरा शो है, देयर इज अ लाइन अप, बीच में कोई इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें भी आप हो. इन फिल्म सडनली, इवन इफ यू आर एन एस्टैब्लिश्ड टीवी, एंड आई न्यू कि मतलब एट दैट टाइम ऑल्सो, इफ आई हैव टू टेक 3-4 टॉप टीवी एक्टर्स, सो यू वुड बी वन ऑफ दोस बैंकेबल एक्टर्स सेइंग यार इसको लो, ये स्टार भी है, एक्टर भी है, परफॉर्म भी करता है, प्रेजेंस है, ऑरा है, तो शो चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. ये जो 3-4 नाम थे उसमें से आप एक. फ्रॉम देयर व्हेन यू डिसाइडेड, लाइक यू हैव मेंशन्ड राइट नाउ, कि नहीं यार अब फिल्में करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक ईगो पे भी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी आ जाती है बात कि थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे हो या स्क्रीन टेस्ट दे रहे हो ना, तो ये कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, do they still, or at that time also, were you typecast as saying यार ये तो टीवी का एक्टर है? नहीं, टीवी का एक्टर तो नहीं, because touchwood my initial 2 films worked. Correct. रामलीला and लय भारी worked, so वो hindrance नहीं हुआ. But yes, because of your physicality, your voice, they were trying to typecast कि ये फौजी है, ये कॉप है, ये पुलिस वाला है, ये ऐसा दिखता है तो यही करेगा, ऐसा विलन होगा या ऐसा होगा, तो वो बहुत टाइपकास्ट करने की कोशिश की. But then again, a very very important thing, whether you have that backup or not, the most important thing which I say is to choose from your heart. You have to have that dare to say no. वो ना कहना बहुत बहुत ज़रूरी है. If you don't like, अनमने मन से मत करो. You were the heck of doing it कि यार चलो कर लेते हैं. So you did say no to TV at that time? TV films यार. Films को भी बोला है? भले ही बड़े रोल नहीं मिल रहे हैं, बट मैंने बहुत फिल्मों को मना किया उस टाइम पे भी, आज भी मना करता हूँ कि मेरे को नहीं करना है.
Because if उसके I'm कारण not, क्यों है? मतलब what is the reason? obviously you have your own thought process कि यार ये फिल्म में क्या रोल है. मेरा सिंपल क्राइटेरिया होता है फिल्म कैसी है, कौन बना रहा है, क्या स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट के अंदर ये क्या रोल है और उस रोल में मुझे क्या करने को मिल सकता है. How do you see yourself and that character? मतलब वो कैरेक्टर मुझे कुछ करने को मिल रहा है कि नहीं, कि सिर्फ खड़ा ही है पीछे, या इज ही पिवटल इन द स्टोरी दिस कैरेक्टर. भले वो 2 सीन के लिए है, बट क्या वो है उसके अंदर वो बात उस कैरेक्टर के अंदर, तो फिर मैं सोचूंगा मैं क्या करूंगा. अगर वो भी नहीं है, जस्ट अ कैरेक्टर हु इज डूइंग नथिंग इन द मेन स्टोरी, देयर इज नो पॉइंट डूइंग, भले वो कोई भी हो बट यार बनाने वाला. शरद, ना बोलने में डर नहीं लगता कि बड़ी फिल्म आ गई है, रोल छोटा है बट अरे फिल्म बड़ी है, मैं ना बोल रहा हूँ, क्या पता इसके बाद और क्या मिले ना मिले. एंड यू सीन दैट फेज आल्सो, आई एम श्योर कि जहां पे देख क्या है ना, देने वाला वो है, ठीक है. ठीक है, आप अगर ये किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो जाओ कि ये मुझे देने वाला है, उसको छोड़कर, उसको छोड़ के, तो फिर तो गलत है ना यार. करेक्ट. आप अपना हार्ड वर्क करो, और आपको इंसान इसीलिए बनाया है उसने, आपको कोई जानवर नहीं बनाया, आपको दिमाग बुद्धि दी हुई है टू थिंक, टू एनालाइज. वो सब करके एनालाइज करो, उसको सोचो एंड गो विद योर कन्विक्शन. डिसीजन. हाँ, कन्विक्शन से जाओ. आपको बुद्धि दी है हर चीज में. मैं नहीं बोलता कि वो सिर्फ रोल चूज करने में है या इन्वेस्टमेंट करने में, हर चीज में. चाहे वो आप छोटी, आप ग्रोसरी लेने गए हो कि मेरे को कौन सी दाल खरीदनी है, आपको दिमाग दिया है ना खरीदने का. वो अंधे थोड़ी ना उठा लोगे, कुछ भी उठा लोगे. करेक्ट. तो आपको दिमाग दिया है कि मुझे कौन सा फ्रिज लेना है, तो आप जाके देखोगे यार मेरे यहाँ ये फिट आता है, ये करेक्ट है, इसमें ये रिक्वायरमेंट, तो आप देखते हो ना, आप चूज करते हो. तो फीचर्स क्या है, नहीं है, ये है, वो है. तो वो दिमाग आपको इंसान इसीलिए बनाया है. आप अंधे नहीं हो सकते किसी भी चीज में, आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा. इसलिए आपको इंसान बनाया उसी ने, तो आपको बुद्धि दी है. उस लॉजिक के साथ साथ ना, जैसे सक्सेस फेलियर आपके हाथ में नहीं है, करेक्ट, बट एटलीस्ट मैंने अपना डिसीजन लिया. वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने अकाउंट मेरी है ना भाई, जो है मेरी वजह से है. मैंने किसी के बहकावे में नहीं किया, किसी के लिए कुछ नहीं किया. इसने मुझे ब्लेम करने से फायदा नहीं है ना. फायदा हाँ बोला या तुमने ना बोला. फायदा होगा तो मैं बोलूंगा मैंने किया, नुकसान होगा तो बोला मैंने किया नुकसान. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ, नोबडी एल्स. करेक्ट. तो व्हाई यू आर गिविंग एन चांस टू अदर्स. आप वो रिस्पॉन्स खुद लो ना यार, कि मैं करूंगा भाई, चलो ठीक है. ऑब्वियसली यू हैव टू एनालाइज, स्टडी, यू हैव टू टेक गाइडेंस. सीनियर है, उनसे पूछो, ये करो वो करो. मैं भी पूछता हूँ बहुत लोगों से, अपने दोस्त कितने पूछता हूँ, करूँ कि नहीं, अतुल भाई यार मैं ये रोल करूँ कि नहीं यार, क्या लगता है आपको, कैसा है ये, हर्षल यार ये कैसे, उतना बिकॉज़ इट्स ऑलवेज नाइस टू नो कि फीडबैक की दुनिया क्या जितना सोच रही है. फीडबैक लोगे उतना आपको, अगर आप वाइज हो तो आपको नॉलेज मिलेगा, अगर आप बेवकूफ हो तो आपको कंफ्यूजन मिलेगा. वो ये सुनो सबकी, करो मन की, यही करना है. और मैं हमेशा बोलता हूँ यार, अगर आप जिस बंदे को आप ना बोल रहे हो, अगर वो सेंसिबल है तो वो आपकी बात समझेगा. अगर वो नहीं है तो उससे उसके साथ काम करने की जरूरत भी नहीं है. करेक्ट. सिंपल सा है. अगर वो आपकी बात सुन के, अगर ना सुन के बुरा मान जाए अपने ईगो में, तो फिर आपको वैसे भी काम करने की जरूरत नहीं है उसके साथ. बिकॉज़ इफ ही इज नॉट, ये आज नहीं करेगा, ये कल आपके साथ कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा जहां आपको अच्छा नहीं लगेगा. करेक्ट. क्योंकि उसकी फितरत वैसी है. तो अगर आप वो समझ सकता है कि मैंने ना क्यों बोला है, तो ही इज द बेस्ट गाय. मे बी टुमारो ही विल कॉल यू अगेन कि ये रोल अब देख अच्छा है, ये रोल करेगा क्या. करेक्ट. और मेरे साथ हुआ है, एक डायरेक्टर ने मुझे एक वो है, क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ, क्या बोलते हैं, पार्ट 1 पार्ट, ऐसा मतलब होता है ना, एंथोलॉजी टाइप्स. एंथोलॉजी नहीं है, मतलब सीक्वल्स है फिल्म की. तो फर्स्ट हिट हुई, सेकंड, वो थर्ड में उसने बोला कि यार ये कैरेक्टर करेगा क्या. अच्छा, फर्स्ट 2 में आप नहीं हो, थर्ड नई फिल्म है, तो मैं तब तो मेरा भी नाम ऊपर आया, तो ये करोगे क्या. मैंने सुना, बता क्या है मेरे को यार, कैसा है. तो ही नरेटेड में, मैंने कहा नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा मुझे, जम नहीं रहे, मैं नहीं कर पाऊंगा. फोर्थ में he gave me the main villain, सिंगल कैरेक्टर था एंड वेरी गुड कैरेक्टर. तो समझ में आ गया मेरे को, देखिए ये आदमी सही है यार, इसने पिछली चीज को चुभा के नहीं लिया अपने अंदर कि यार मैंने मना किया था. करेक्ट. There was some reason why I said, and I give them logic you should also. always respect the actor's choice, because finally मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कन्विक्शन कैसे आएगा अगर मैं अनमने मन से हाँ भी बोल दूँ आपको फेवर करके कि मैंने हाँ मैं कर लेता हूँ, चलो. और बहुत बार ना एज राइटर्स और एज डायरेक्टर्स हमें लग रहा होता है ये कर लेगा, बराबर है, मगर फाइनली स्क्रीन पे तो उसको दिखना है ना. तुम सुपर्स में लिख नहीं सकते हो कि राइटर की कन्विक्शन थी मगर निभा नहीं पा रहा, या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा. इट हैज टू बी द एक्टर्स चॉइस कि मैं ये करूं या ना. क्या है ना, समटाइम्स ऐसा नहीं बोलता कि एक्टर हमेशा सही है. नहीं, इसीलिए बड़े बड़े एक्टरों ने बाद में जाके बोला है कि यार ये ऑफर मुझे आई थी, जो सुपर हिट फिल्म हो जाती है. हम सब इंसान है यार, गलती करेगा इंसान, उससे सीखेगा ना. और हो सकता है गलती ना हो, बिकॉज अगर वो बड़े एक्टर जैसे आमिर, शाहरुख हैव एक्चुअली गॉन ऑन रिकॉर्ड सेइंग यार वो फिल्म हमें पहले आई थी, मैंने नहीं, मगर हो सकता है अगर वो करते तो हिट नहीं होती पिक्चर. एग्जैक्टली. तो you never know. So sometimes you just like you're saying, go with your conviction कि मैं वो किरदार में खुद को नहीं देख पा रहा हूँ, जो भी रीजन हो कि यार मुझे नहीं लग रहा. So मुझे नहीं लगता ना बोलने में कोई
बुराई है। कल को मैं भी फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। बुराई बिल्कुल नहीं है। आई एम तो एडमायरिंग योर करेज, बिकॉज नहीं, और ना मैं- बोलने के बाद भी ये बोलना कि नहीं कुछ ना कुछ मैंने भी आगे फिल्म आएगा। प्रोड्यूस की है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक रोल को मुझे कोई चाहिए कि यार ये करे, और उसने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई एंड क्या होता है ना, मैंने लाइफ में एक थॉट प्रोसेस बनाया, ऑलवेज थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। करेक्ट, वो दिल पे नहीं लेना है यार किसी ने। नहीं, मैं अगर समझ लो आज मैं किसी ने कुछ किया मेरे साथ, हाँ। तो मैं हमेशा है ना वो थिंकिंग उसके पर्सपेक्टिव, क्यों किया हुआ इसने, या तो इसका दिन खराब चल रहा होगा, कुछ सर्कमस्टेंसेस होंगे, या ऐसे घर में कुछ प्रॉब्लम होगा, Situation, हाँ। ये मूड खराब होगा इसके, ऐसे बोल दिया है इसने, तो व्हाई शुड आई ब्लेम हिम। मैं उसको इतने साल से जानता हूँ, उसने एक चीज कुछ कर दी ऐसी, उससे मैं उसका वो पिछले 15 साल के जो दोस्त थे उसको तो दांव पे लगा नहीं सकता। वो So I कैरेक्टर should थोड़ी उसका understand चेंज that. हो जाएगा एक एक्सचेंज से, वो एक शायद exchange, हाँ। कुछ तो So always- but that is the benefit, or rather not benefit, but that is the upside of having a very mature head on your shoulders when you can look at somebody's perspective even when they are saying something that offends you हाँ। or could offend you। क्योंकि दुनिया में मैंने वो भी देखा है कि लोगों को, जैसे आपने कहा, कुछ लोगों को बुरा लगता है एक्टर ने ना कैसे बोल दिया, अरे हाँ। उसका, बट उसकी choice है यार। बट दैट मैच्योर हेड टू हैव किया, और उसने ना बोला मतलब उसकी कोई ना कोई मेरा तो एक बार reason- ऐसे ही होता है, एक बार मैंने एक फिल्म के लिए मना किया तो वो बोले तुमने उसको मना किया। मैंने उसको मना नहीं किया है, मैंने उस स्क्रिप्ट को मना किया है Correct, भाई। उस कैरेक्टर को मना किया, उस हाँ, उस script स्क्रिप्ट को मना किया है मैंने उस आदमी को मना नहीं किया है, मत समझो ऐसा। और वो आदमी ने ये अगर समझना चाहिए तभी जाके, लाइक यू सेड, वो अगली बार भी आएगा अगर उसको वापस लगे। लगे कि नहीं यार ये काबिल आदमी है, Exactly. उसको मैं रोल दूंगा। एंड ये रोल में मुझे दिख रहा है वो। इंसान है ना लाइफ में वो सिक्योर है ना, फील करने वाला, वो सिक्योरिटी ना, हम कल ही बात कर रहे थे इस बारे में, वही मैं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कभी भी आपको इनफ नहीं लगेगी लाइफ में, करेक्ट, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे और वो पैसा आपको कम ही दिखेगा। करेक्ट। सो वॉट एवर यू हैव ना, यू शुड एंजॉय, यू शुड हैव। मैंने मेरी बहुत बड़ी बहुत पुरानी एक ऐसी पॉडकास्ट की एक लाइन है कि भगवान ने हमें पृथ्वी पे क्यों भेजा है, क्योंकि यहाँ हवा है, पानी है, फल फ्रूट है, ऑपोजिट सेक्स है, तो एंजॉय। क्यों मार्स पे नहीं भेजा, क्यों चंद्रमा पे नहीं भेजा है? यू हैव एवरीथिंग हियर एंड ये सेंड यू टू एंजॉय हियर। यही स्वर्ग है और यही नर्क है, आपको यहीं अच्छा भोगना है। अपना स्वर्ग तो यहीं अपना बना कर्म अच्छा करो और यहीं भोगो, Correct. कर्म खराब करो फिर यहीं भोगो। देयर इज नो अदर वर्ल्ड, यही है। तो यहाँ एंजॉय करने भेजा है, एंजॉय करो, किसी को हार्म मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, अपनी जस्ट लाइफ बी अ में गुड खुश रहो, पर्सन। करेक्ट, बी हैप्पी यार। मैं हमेशा मेक अदर्स हैप्पी। बोला था ना, मैं घर गया था, मम्मी कुछ गुस्सा थी मुझसे और कैसा से भी कुछ ऐसा हो गया, पापा यू डिडंट गेट मी दैट, यू केम फ्रॉम फ्लाइट, और मैंने कहा था कुछ लेके आना, और फिर वाइफ किसी से कुछ हो गया, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, भाई क्या हो गया? अच्छा, तीनों औरतें गुस्सा है। मैंने क्या हो गया? तो बोलती, मैंने कहा कोई खुश नहीं है मुझसे यार, आई खुश नहीं है, कैसा खुश नहीं है, तुम खुश नहीं हो। मैंने मुझे क्या, मैं तो खुश हूँ। मेरा मुद्दा ये है कि अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं आपको खुश रख सकता करेक्ट, हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो फिर मैं आपको कैसे खुशी दूंगा? फिर वो फेक हो जाएगा ना, फेक हो जाए, प्रिटेंशियस हो जाएगा, प्रिटेंशियस हो it will जाएगा। not एंड सामने वाला इफ ही नोज यू बेटर, ही विल अंडरस्टैंड कि ये फेक कर रहा है। सो ऑलवेज खुश रहो लाइफ में यार, खुश। एक बता रहा हूँ, ये कॉफी देखिए, सिंपल सा एक कप है, तू मुझे महंगे से महंगे सॉसर और कप में ला के दे तो भी टेस्ट ही आने वाला है मुझे। करेक्ट, जो हम करने वाले थे, एंड शरद वो भी ने taste- छोड़ना है यार, जो है वो दे दे। तो भी टेस्ट यही आएगा मुझे। करेक्ट, मैं कांच के गिलास में पीऊँ तो भी आएगा और इसमें भी टेस्ट ही आएगा। तो मुझे उससे मुझे तो वो खुशी है जो पी के मिल रही है ना, उससे मुझे आउटर से कोई मतलब नहीं मिल रहा है। सो दैट हैप्पीनेस इज इनसाइड। एंड वंस यू एक्सपीरियंस दैट विथ दैट कप, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या है ना, ये दुनिया है आपके आसपास, बट ये है ना, ये आपके अंदर की चीज़ है। करेक्ट, तो इफ अंदर से आप खुश हो ना, तो ये बाहर की चीज़ों में फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ भी दे दो, चाइना वेयर दे दो, कुछ भी दे दो मेरे को, क्या फर्क पड़ेगा? करेक्ट, तो मुझे याद है मैं बट और दैट्स कीर्ति सच अ जब, सिक्योर वे टू थिंक अबाउट लाइफ बिकॉज यार शरद। यार मैं सिक्योर वे, मतलब जब कुछ भी है तब भी मैं ऐसा था, एग्जैक्टली, और जब भी बहुत कुछ है तो भी मैं वैसे ही हूँ। पीपल बोलते हैं कि यार तू ऐसे ही रहता है, तू ऐसी बात करता है। मैंने कहा मैं अपने रूट्स कैसे छोड़ दूंगा यार, मैं तो वैसे ही हूँ पहले से। और वो रूट्स नहीं तो तुम्हें यहाँ तक लाया, हाँ, यहाँ मतलब बनाया, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। मतलब आई टेल यू, मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर में बहुत गालियाँ देते हैं लोग, अनफॉर्चुनेटली वो है, अभी कुछ नहीं कर सकते उसका इलाज। तो वो आपकी आदत में आ जाता है, 20-22 साल आप रहे हो तो बिना गाली की आप बात नहीं सुनी करते। तो मैंने भी है बहुत बहुत सारी। तो मैं जब मुंबई आया तो लोग बोलते थे ये कैसे बात करता है, तो गाली दे दे के, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि ये ऐसे ही बात करता है। करेक्ट, ये इसके दिल से नहीं है कि ये गालियां दे रहा है मेरे को, आदत ये है, आदत culture है, है, ये ऐसी बात कर रहा है, mannerism कल्चर है, है। हाँ। और इट्स बीन 24 ईयर्स ऑलमोस्ट, मैं अभी भी वैसे ही बात करता हूँ, और लोगों को अब लगता है हाँ ओके ऐसी बात करता है, तो ये तो है, ये तो चिल्ड आउट बंदा है, ऐसी बात करता है। सो आई थिंक, एंड इफ दैट, अगर मैं उसको कर्व कर लूंगा तो शायद मैं अंदर से खुश नहीं रहूंगा कि यार मैं बहुत प्रिटेंड कर रहा हूँ, बहुत फेक कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे जो मैन फ्राइडे हैं या मेरे ड्राइवर है वो बोलते हैं सर आज आपने गाली नहीं दी, मजा नहीं आ रहा।
उनको आदत, उनके कान को आदत हो गई, खून निकलेगा कान से गाली। हाँ, इट्स नॉट, मैं गुस्से में नहीं देता गाली, मैं चलते फिरते मतलब। सो आई कम फ्रॉम नागपुर, तो खानदेश वानदेश ना वो सब, मतलब मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ना वो मराठी नहीं है, वो हिंदी मराठी थोड़ी सी हैदराबादी भी टच हो जाती है। हाँ, तो उसमें भी ना वो टोनैलिटी, कोल्हापुर से अलग 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 गाली है, which you will not understand, गाली दे रहा है मेरे को। करेक्ट। तो माय नाना जी यूज्ड टू, मतलब वो मुझे गाली देके बोला रे जानबूझ के निकल ही जा रही है। हाँ, निकल ही जा रही है। अच्छा, वो जो गाली दे रहे वो उन्हीं के ऊपर। तो मैं बोल रहा भाई तुम तो खुद ही को बोल रहे हो, तुम मुझे क्या। बट एज अ किड नो यू डोंट रियलाइज, बट वो उनका he's grown up like that, वो तरीका है, वो बस जबान वैसी ही है वहाँ की, और वो प्यार से बोल रहे हैं बहुत बार, दिल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। करेक्ट। आई एम कमिंग बैक टू योर परफॉर्मेंसेस बिकॉज आई रिमेंबर मैंने आपको कॉल किया था वंस आई सॉ लक्ष्मी। तो यार ये रामलीला, भूमि, आई थिंक भूमि में आपने विलन का रोल किया था, पवन कल्याण के साथ एक तेलुगु फिल्म की है, छत्रपति शिवाजी महाराज, हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज इन तानाजी, लक्ष्मी। व्हेन आई लुक एट द काइंड ऑफ रोल्स यू डन, मैं शायद 10 ही फिल्मों के नाम लूं, साथ में जितने भी किए, मगर जो रोल्स है ना वो इतने अलग हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग, जब हम वो 360 प्लेयर नहीं बोलते, एबी डिविलियर्स, कि भाई नहीं भाई ये स्ट्रीमलाइन शॉट्स नहीं मारा, ये वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से निभाना। बीइंग इन भूमि ऑपोजिट ऑफ संजय दत्त, बीइंग इन लक्ष्मी along with an अक्षय कुमार in a very similar kind of a character, with पवन कल्याण, छत्रपति शिवाजी महाराज तानाजी में अजय के साथ। सो दीज आर नॉट स्मॉल रोल्स और दीज आर नॉट वीक कैरेक्टर्स ऑल्सो। रोल बड़ा छोटा एक होता है, बट वो किरदार को निभाना उस तरीके से, हाउ हैव यू गॉन अराउंड अप्रोचिंग दैट कैरेक्टर? बिकॉज ये टीवी से बहुत अलग है। टीवी में आपको एक सेट मीटर दिया जाता है, उठो वही करो 6 महीने 8 महीने, और जो दूसरा भी मिलता है वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही होगा, किसी का भाई कुछ है। टीवी में उतनी वर्सेटैलिटी है ही नहीं बाय डिफॉल्ट। हाउ हैव यू डन दिस? I'll tell you पीछे एक ना, there is a thought process also. I tell you, when I was doing सात फेरे में, so it went on for 3 years. Now every day you're doing the same role every day, 23-24 days in a month. There's no variation to your craft. There's no learning. Obviously, when you start, you learn, and after that, there's a stagnancy. There's a plateau where you don't learn. You're just going with the flow. So learning stops. Correct. In that role, especially. So before that, also, I go back maybe 5 years back, 5 or 10 years back, maybe. I did my 12th in physics, chemistry, maths, PCM. अच्छा, आप PCM वाले हो? PCM. Okay. Hello. I did my graduation in sports and physical sciences. I did BP, okay, where I learned sports management, correct, anatomy, physiology, and a lot of other subjects, sociology and psychology, sports psychology. And correct. Then I did my MBA in marketing and systems, and then I became an actor. So understand, but fluctuation if you see in my studies also. Correct, academic graphy. I was never stick to one because I found it very boring. कि मैं एक ही चीज करे जा रहा हूँ यार, बड़ा बोरिंग सा है यार। मैंने जब मैं टीवी करना है, when 3 years I realized कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है मेरे लिए, I should change. You won't believe in 2009 I was those 3 years, not just in India, abroad. If you ask today also, they'll call me Nahar Singh. Because उस किरदार से आप Nahar Singh. Across the globe, this character was so famous. I traveled a lot with that character. And होता है कि ये दामाद हो तो ऐसा हो, पति हो तो ऐसा हो, आदर्श होता है ना कि वेरी पॉजिटिव, ये है एपिटोम ऑफ अच्छा आदमी, करेक्ट। सो व्हेन आई फिनिश्ड दैट शो, देयर लॉट ऑफ शोज केम, आई थिंक आई हैव व्हाट लेस देन 12-13 शो व्हिच आई सेड नो, वेरी सिमिलर, गुड गाय, गुड हस्बैंड, टेलीविजन। आई सेड कि यार मैं करके आया हूँ यार, मैं क्या करूँगा। एंड आई डिड अ शो कॉल्ड बैरी पिया फॉर एकता। इनिशियली अ नेगेटिव, ही इज अ जमींदार और जो लोगों को, किसानों को लोन देता है, फिर उसके एवज में एंड वेरी ब्रूटल ही, उसके एवज में वो लोन चुका नहीं पाते तो बोलता है अपनी बेटी को एक दिन के लिए छोड़ के जाओ मेरे पास, ऐसा कुछ कैरेक्टर था। व्हेन द फर्स्ट प्रोमो केम, लॉट ऑफ माय एक्टर्स, मुझे याद है अभी भी कई एक्टर ने मुझे फ़ोन किया और बोले तू क्या कर रहा है, तू पागल हो गया, तेरी इमेज क्या है, तू क्या कर रहा है, तेरी इमेज ऐसी है, तू यहाँ वाली इमेज है, तू मतलब राम की इमेज है, तू मतलब रावण वाला रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, पागल हो गया, करियर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे को कुछ इंटरेस्ट आ रहा है करने में, मजा आएगा, आई लर्न समथिंग, कुछ नया है। जब मैंने वो किया, आई गॉट माय फर्स्ट अवार्ड फॉर दैट शो, जो मैं अवार्ड में ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट फॉर वेरी पे आई गॉट अ
अवार्ड। बट वो अगेन इट्स इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वन। करेक्ट, रिकॉग्निशन। फिर जब वो मैंने किया 1.5 साल, फिर लोगों ने मुझे नेगेटिव ऑफर करना शुरू किया। टाइप कास्ट की बात होती है। मैंने कहा अब क्या करूँ, हीरो हो गया ये नेगेटिव, अब क्या करूँ मैं। देन राजन शाही ऑफर्ड मी अ शो कॉल्ड कुछ तो लोग कहेंगे। मोनिश बैल वाज डूइंग इट एंड मोनिश सर लेफ्ट। तो मुझे मैंने कहा तो मैच्योर्ड है तो 40-42, मैं उस टाइम 32-33 साल का था। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा। हाउ विल यू लुक द पार्ट, करेक्ट। नहीं वो करोगे तो कमलेश पांडे रोड रंग दे बसंती, ही कन्विंस्ड मी, राजन शाही कन्विंस्ड मी एंड इट द शो एंड पीपल अप्रिशिएटेड कि यार ये डॉक्टर मैच्योर्ड, कहाँ विलन से सीधे एक सडनली एक न्यूरो सर्जन एंड यू नो वेरी लव, इट्स अ लव स्टोरी, पीपल अप्रिशिएटेड दैट। फिर वही मैच्योर रोल आने लगे उसके बाद मुझे। देन आई डिड एजेंट राघव। सो आई कीप ऑन ट्राइंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड दैट सेम पैटर्न आई अप्लाइड इन फिल्म्स कि मैं एक ही करता रहूंगा तो मैं क्या सीखने वाला हूँ। Now suppose I'm doing a cop also in multiple films. अब उस cop में क्या वेरिएशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, रीजन हुआ, लैंग्वेज हुआ, या उसकी बैक रीजन, स्टोरी है, उसका बैक स्टोरी क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका लहजा क्या है, कुछ तो अलग मिलेगा ना मुझे। विलन में भी कुछ तो अलग मिलना चाहिए ना। सो आई ट्राई, इसलिए ना बोलता हूँ ना मैं कभी, मुझे बहुत सिमिलर रोल्स आते हैं। पुलिस वाला क्या ही एक्सप्लोर करें, पुलिस वाला ये लाश यहाँ कैसे, तो मतलब उसमें क्या कर लोगे वेरिएशन, ये लाश यहाँ कैसे, तो वेरिएशन कैसे लाओगे। तो जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, मतलब आई कैन डू दैट एवरी डे। सो माय पॉइंट इज दैट कि इसलिए शायद वो ना बोलना सीखा, इसलिए शायद लाइक अ फिल्म आई विल टेल यू व्हिच वाज आई जस्ट सेड, मतलब तुषार की मैंने एक फिल्म की, तुषार हिरंदानी मेरा दोस्त है, उसने श्रीकांत बनाई और उसने कहाँ से मुझे इमेजिन किया एक उस कैरेक्टर के लिए, एंड मैं सुना, मैंने कहा आई एम डूइंग इट, मैंने कहा इतनी ब्यूटीफुल फिल्म है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो समटाइम्स यू डू बिकॉज़ द फिल्म इज वेरी गुड, लाइक आई डिड दरबान द फिल्म, my role is very small, but because the story is very good, the director is fantastic, the cinematographer is fantastic, so I wanted to be a part of the film. Correct. Sometimes you love to be a part of a very good film, irrespective of what your quantity length कितना है, हाँ, quality क्या है, and you are associated with a good thing. ऐसा नहीं है कि मेरा इसमें कोई लीड ही करना है अच्छी फिल्म में, तो भी मैंने ठीक है यार, एक छोटा कैरेक्टर है, अगर आपने अच्छा काम किया आप दिखोगे फिल्म के, एंड टचवुड इन द पोस्टर ऑल्सो आई वाज देयर। सो मेन पोस्टर जो है वो मेरा और शारिब का ही है उस फिल्म का। ऐसा नहीं है कि द किड एंड और द हस्बैंड वाइफ पोस्टर केम, बिकॉज कहीं ना कहीं यू फील फॉर द कैरेक्टर, भले वो छोटा कैरेक्टर है। सो यू नो आप अपना इंटेंट राइट रखो, वो बहुत ज़रूरी है, वेदर इट्स स्पोर्ट्स, वेदर इट्स एक्टिंग, आपका इंटेंट है ना उस टाइम पे कितना करेक्ट है ना, वो आपको 90% डिसीजन आपके फेवर में देगा। बाकी नसीब है आपका, आपको नहीं मिलता है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ, एंड बट वो किस्मत नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसमें अब तो कोई लड़ नहीं सकता ना किसी चीज से। करेक्ट, एंड दैट इज द फाइनलिटी, इंस्टेड ऑफ द फाइनलिटी यू लुक एट द प्रोसेस, लड़ाई नहीं कर सकते। करेक्ट, यू लुक एट द जर्नी, यू कैन जस्ट बी कंसिस्टेंट कि ठीक है चल किस टाइम का वेट करता हूं, इंटेंट टू बी दैट। तो एक बहुत बड़ा एक्टर है, बताऊं किस्सा मेरा, तो हम लोग साथ में शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, कभी कभी लंच में हम लोग बैठ के ऐसे टाइम पर साथ में लंच करते थे, कनेक्टिंग, हाँ, तो हम लोग बैठे लंच कर रहे थे, तो एक दिन मेरे पास आए, बोले भैया जी आप बहुत टीवी किए हो। मैंने कहा मैंने बहुत टीवी किया, एक टीवी शो आ रहा है। मैंने कहा क्यों कर रहे हो, अब तो बहुत अच्छा एक्टर हो यार, क्यों कर रहे हो, बिकॉज आई सीन सम ऑफ हिज वर्क। मैंने आप तो बहुत अच्छा एक्टर हो यार, ट्रेंड हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, तो क्या ज़रूरत है। बोला नहीं नहीं यार ये फिल्म देखो अब चल रही है 3 महीने से, जो पैसा 3 क्या वो 8 महीने में मिलेगा हमको, टीवी में क्या है महीने में उतना पैसा हमको 1 महीने में मिल जाएगा। मैं देखो सर वो फाइनेंशियली इज गुड, बट एज ए क्राफ्ट विद योर पेशेंस एंड द काइंड ऑफ एक्टर यू आर, आप नहीं कर पाओगे पहली बात तो, एंड फिर जब वो करना पड़ेगा तो यू विल बी करप्ट। करेक्ट, और दिल पे पत्थर के कर भी लोगे मगर वो करप्ट, फिर ऑनेस्ट ही नहीं हो गया। अरे नहीं भैया जी हमको तो घर भी चलाना है, ऐसा सही साइड है, फिर आपकी मर्जी, बट आई विल एडवाइज यू नॉट टू डू इट, बिकॉज ये मैं मानता हूँ कि आप लगे रहो जो कर रहे हो उसमें, आपका टाइम आएगा ना तो आप खुद बोलोगे कि यार ये कैसे हो गया लाइफ में, मेरी लाइफ में हुआ है, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा। तो बोले कि अरे नहीं देखते हैं, देन ही डिड द टीवी शो, then I got to know in 3 months he left the show also. The next year he got a film fair. I met him in film fair. I said कि भैया जी कैसा, सही बोल रहे थे भैया आप, टाइम जब आता है ना, अब हमें डेट ही नहीं देखी 3 साल के लिए। So the point is that कि आप वो वक्त जब आएगा ना आपका, तो आप खुद ही हक्के बक्के रह जाओगे कि यार ये हुआ कैसे लाइफ, कैसे हुआ, बट वो तब भी होता है बट ना, वो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस इज द की, यू नो। आप हम अक्सर, हम इंसान की फितरत है कि हमारे पेशेंस ही नहीं है, चाहे वो डेली रूटीन में पेशेंस की बात करो या लॉन्ग टर्म पेशेंस की बात करो। करेक्ट, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कम से कम। और ना ये कहना बहुत आसान है क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है, पेशेंस विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन, ये पढ़ते सब पढ़ रहे हैं, बट अंदर से मैं भी बोल रहा हूँ ये, बट मैं भी कई बार पेशेंस लूज करता हूँ, ऐसा नहीं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट, बट फिर वो ये कि मैं किस टॉपिक पे पेशेंस लूज कर रहा हूँ या किस चीज के लिए पेशेंस लूज कर रहा हूँ, बहुत करेक्ट।
डिफरेंशिएट करती हैं चीज़ों को। हम घर पे तो कितने पेशेंस यूज करते हैं, खाना नहीं दिया अभी तक, बट दैट टाइम समटाइम्स आई और उसका इफेक्ट इतना बड़ा नहीं है। हाँ कि यू नो यू प्लेइंग दैट कार्ड्स वेरी वेल कि कैन आई अफोर्ड टू डू दिस, कैन आई स्नैप एट दिस पर्सन, वो हम लोग कर लेते हैं हम लोग। हाँ क्या ठीक है, इधर कर ले उधर नहीं कर ले, वैसी वाली बात है। You said you have got a degree in sports and in psychology. I also remember, were you also planning, हमारी नच बलिए के टाइम बात हुई थी जब मैं आपको और कीर्ति को पहली बार मिला था, I remember, as Hussein's friend, and we were I think chilling at Hussein's house only after rehearsals or after a shoot. Were you already working as a physical trainer, gym instructor? You were already doing it, so or Gwalior, there's a club called Jivaji Club. So I used to go with some of my friends there and ऑब्जर्व की स्विमिंग पूल है, स्क्वॉश कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्नूकर बड़ा सा रूम है, सब कुछ, जिम नहीं है। और सभी तोन लगा के घूम रहे हैं वहाँ क्लब में, क्योंकि ऑब्वियसली बार भी है, तो एवरीबॉडी इज प्लेइंग कार्ड्स और कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई बॉडी नहीं है, कितनी बड़ा पैराडॉक्स है ना कि सारे स्पोर्ट्स के बीच में एक बार है और सब लोग अपनी तोन लेके घूम रहे हैं। तो मैंने बोला वहाँ पर, मैंने कहा यार आप जिम क्यों नहीं है यहाँ पर? तो बोला यार किसी ने सोचा ही नहीं। मैंने कहा मैं खोलता हूँ। सो दे कंस्ट्रक्टेड अ सेपरेट, not building, but it's a big hall and they allocated that area for gym. They built it and I said you go. So I went to Meerut, I bought equipments. मैंने वो gym शुरू किया, I appointed few people as manager. I used to go there in the morning, evening. मैंने female trainers ये सब appoint किए वहाँ पर कि लोग आएंगे and people started coming also. तो for 2 years I worked there. 2 साल चला है वो gym. हाँ, मैं I was doing my MBA, so मुझे वहाँ से सैलरी मिलती थी बहुत कम, 2,750 रुपये पर मंथ, बट ठीक है मेरे लिए काफी था। 2,750 रुपये मंथली, बट ठीक है उस टाइम के लिए ठीक था। मतलब यार की गाड़ी का घर भी है ग्वालियर में, 1,900 रुपये की EMI जा रही है बाइक की, वो ठीक है, बाकी अपना खर्चा निकल रहा है। सो आई वर्क देयर एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर इन्वेस्टर। आई हैव ग्रेट प्लान्स इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, बट वो ये कि अब विजन है, आई एम वेटिंग फॉर कोई तो मेरे स्टार्टअप में पैसा लगा है, जहाँ मुझे जो मेरा प्लान है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, जो किसी ने किया नहीं है इंडिया में ऐसा। सो बट वो मेरे दिमाग में है, बट आई एम वेटिंग फॉर सम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट। आपको पता ही है कि मैं कैसे बेवकूफ़ हूँ, मैंने अपना घर वर दाव पे लगा के मेरा शो बनाया था, विच यू केम फॉर, यू गेव सच अ लवली बाइट, यू वर इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट व्हेन ही सॉ माय शो, इट्स द फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर, आई वाज सो मूव्ड। इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनीबडी हु इज डायरेक्टिंग और राइटिंग, व्हेन एन एक्टर लाइक दिस, I remember I met you at Hussein's house and he told me categorically saying whenever you're making a film, do call me, I would like to work with you. अब वो होगा, किरदार आएगा कि नहीं, वो दूसरी बात है, that is beyond. But the compliment is the willingness. No, I always miss, I know now you for almost 20 years. Yeah. You did 2006 Nach Baliye, right? Yeah. मैं इसको हमेशा बोलता हूँ हर्षल को, अब इनका देखो नाम भी साथ में निकलता है, हर्षल विट्ठल हमेशा साथ में निकलता है, बिकॉज देयर इज होता है ना वो बॉस्को सीजर और ऐसा वाला नदीम शवन, सलीम सुलेमान वैसा है ये। तो ये हर्षल विट्ठल हमेशा साथ में निकलता है, और राइम भी होती है ना, राइम भी होता है। हाँ, पता नहीं कैसे राइम है, वो आदत पड़ जाती है आपकी जबान को। तो अच्छा वो हर्षल विट्ठल वाला विट्ठल या हर्षल विट्ठल वाला हर्षल। तो आई ऑलवेज बीन टेलिंग व्हाटएवर you chose your paths, but you know the brain you have in terms of choreography, very very less people have that. I'm telling you honestly, बहुत कम लोगों में वो innovation है, which I could see 20 years back when you know worked for Hussain Tina. Correct. सब लोग कुछ कर रहे हैं, इनका अलग ही कुछ चल रहा है, and that was so different. And when you do different ना, that takes you somewhere else. तो मैं अभी भी बोलता हूँ, ये सच अ फैंटास्टिक माइंड, भले ये मोटा हो गया हो यार पैर, बट जो दिमाग है ना, दिमाग कभी मतलब खराब नहीं होता है आदमी का। हाथ पे थोड़े खराब हो सकते हैं या एज बढ़ सकती है। सो ऑलवेज टेल हिम कि यार प्लीज स्टार्ट अगेन, मैं तेरी क्लास में आता हूँ, चल हफ्ते में 2 दिन मुझे सिखा थोड़ा सा, एंड स्टार्ट कोरियोग्राफिंग अगेन, बिकॉज यू हैव दैट इन यू। सुनता ही नहीं। देखो क्या है ना, कभी कभी वो होता है कि मेरा डिसीजन मेरा है, मैं भुगतूंगा उसको, तो भुगत तू अभी बैठ के, तुम मत मान मेरी बात। नहीं बट आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू कि देखो मुझे लगता है कम से कम पर से डायरेक्शन ठीक है। वो टाइम आज बॉस को भी दोस्त है मेरा, उसने भी जाके इतने साल बाद फिल्म डायरेक्ट की। करेक्ट। या आज विक्रम फडणवीस डिजाइनर है, उसने भी जाके फिल्म डायरेक्ट की। करेक्ट। तो हर एक आदमी का वो टाइम आता है जब तू फिल्म डायरेक्ट करेगा, मैं तेरी फिल्म में काम करूंगा, वो टाइम आएगा। But meanwhile, you can't stop working what you are doing right now, or what you are expert in. And what people like, admire, respect me for. Respect you, boss. मतलब मैं बोल रहा हूँ उस लीग में से, you name it, कौन जिसको इतना दिमाग है बता मेरे को। डांस सबको आता है, मैं बताऊँ डांस सबको आता है, ब्रिलियंट डांसर,
कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छे हैं, बट जो यूनिकनेस है ना, जो डिफरेंस है, जो एक अलग फुंतरू दिमाग जो है ना वो तेरे अंदर है। तो मुझे लगता है कि तूने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया बिकॉज ऑफ योर ओन थॉट प्रोसेस और योर ओन एम्बिशंस कि मेरे को फिल्म डायरेक्ट करनी, मेरे को लिखना है, मेरे को प्ले ग्रेट, आई एम नॉट सेइंग, एंड यू डिड इट आल्सो, बट द पॉइंट इज दैट ये करते छोड़ के नहीं करना। मैं जैसे मैं आज फिल्म करता हूँ और मैंने, लोगों को लगता है कि मैंने टीवी नहीं किया, मैंने 2012 से टीवी छोड़ा, उसके बाद मैंने 2 शो किए हैं। हाँ, उसके बाद भी ऐसा नहीं है, बट किए हैं मैंने, बिकॉज दैट वाज नेसेसिटी। करेक्ट, वो मुझे करना ही है। पीपल रिलेट टू मी विद दिस, ये लोग जो मेरे को टीवी पे देखते हैं वो गायब ना हो जाए। अभी भी मैंने किया, देयर इज अ रीजन टू इट। ऐसा नहीं कि मैंने टीवी कर लिया, मैंने फिल्म कर रहा हूँ तो मैंने वॉइस ओवर्स छोड़ दिया, मैं डबिंग छोड़ दी। मैं कभी कभी मैं वो भी करता हूँ। अच्छा, मैंने ये भी छोड़ दिया, ये नहीं किया कि मैंने लाइव शोज होस्ट करना छोड़ दिया। करेक्ट, मैं लाइव शो होस्ट भी करता हूँ। सो ये सब करते रहो आप। अब मुझे भी फिल्म डायरेक्ट करनी है आगे जाके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। प्रोड्यूस करनी थी मैंने कर ली, मुझे भी डायरेक्ट करनी है, बट मैं वो राइट टाइम का वेट करूंगा। मैं उसके लिए सब छोड़ नहीं दूंगा। छोड़ नहीं दोगे, करेक्ट, करना है वो ठीक है। जब मेरे को लगता है अब हथौड़ा मारने की बारी आई है, तब मैं वो ब्रेक लूंगा 6 महीने का, 1 साल का, कि अब मैं चलो मुझे भी ऐसे ही लगा था कि हथौड़ा मारने की बारी है, बट यू रियलाइज हथौड़ा तो फिर कोविड ने मार दिया ना हम पे। मैंने तभी रियलाइज, जब कोविड आ गया है तो पता है कि अभी इकोनॉमी ऐसी होने वाली है, वैसा होने वाला है, गेट बैक टू व्हाट यू डूइंग। तो वो बहुत जरूरी है। एंड क्या होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी, दिखना बहुत जरूरी है। वो जो हमारी आज तो पूरा वर्ल्ड ही उस पे चल रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल के टाइम जो बात हो रही थी, आज टैलेंट हो चाहे नहीं हो, लोग दिखने पे काम कर रहे हैं। यार, इमेजिन, मतलब वी शुड नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। नो बट दैट्स अ फैक्ट, इट्स ट्रू कि आपके ना टैलेंट हो चाहे नहीं हो, बट आप दिख रहे हो और इतनी जगह रीच है आपकी, यू आर इन बॉस। करेक्ट, इतने व्यूज आ गए, एटलीस्ट यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आप दिखाओगे नहीं तो कैसे? तो यू हैव टू बी, यू नो, एंड आई एम टेलिंग यू हर्षल, मुझे पता है यार कि इफ यू टॉक अबाउट दोज मेकर्स, रामू सर तो नोज यू नो प्रीटी वेल, वेरी वेल, मतलब कितने, मतलब अभी 50-60 फिल्में हो गए, अगेन ही स्टार्टिंग, है ना। चाहे वो श्रीराम सर हो, चाहे वो, दे ऑल नो यू पर्सनली ऑल्सो। सो आई थिंक इफ यू इनिशिएट नाउ, I can foresee it that I think within 6 months you will be all over the film circuit. But वही है कि वो जो एक कदम उठाना जरूरी है। मुझे हमेशा समझाते ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया है, तो कम बैक इन साइड, बिकॉज करेक्ट, क्राफ्ट तो कहीं नहीं गया, क्राफ्ट तो कहीं नहीं है ना, वो तो है अंदर, वो तो उल्टा और डेवलप हो गया है, क्योंकि तुम्हारी बहुत थॉट्स बढ़ते बढ़ रहे हैं। आप लोग, आप इंटरनेशनल देख रहे हो, ये देख रहे हो, अच्छा ये है, और नए बच्चे कमाल कर रहे हैं। So you get inspired with them also कि यार ये इतना अच्छा कर तो मैं तो और भी अच्छा कर सकता हूँ। So many of them whose work I like want to work with me. मैं अपनी लाइफ में खाली मुझे बताओ कि ये ऐसा ऐसा है, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, मैं अपने आप को चोर एक्टर बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं ना हमेशा बाकी इनके साथ काम करता हूँ, कुछ ना कुछ उनका ऐसा ले लो, चुरा लो, तो मैं चुरा लेता हूँ। चाहे वो के सर हो, चाहे मनोज सर हो, चाहे दत्त साहब हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अजय सर हो, तो आप है ना, वो चोरी करना आना चाहिए तरीके से, पता भी चले किसी को, है ना। तो वो एक तभी आती है जब आप निरंतर करते रहते हो। करेक्ट। जितने भी कि हम जब भी हम टेलीविजन कर रहे हैं, हम फिल्म कर रहे हैं, टेलीविजन में बहुत बड़ा इशू होता है ये। मैं हमेशा लोगों को एक बोलता हूँ कि कोई एक्टर ना सामने वाले को सुनना नहीं चाहता, कोई एक्टर को, वो अपनी लाइन में घुसा रहता है। हाँ, मेरी लाइन्स क्या है, मेरी एक की लास्ट क्यों देगा, मैं अपनी लाइन्स बोलूंगा। मतलब तुम्हारे जो चार शब्द है उसके बाद मेरे, हाँ, इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रोसेस। क्लोजअप मीडियम है, आपके फेस का एक एक्सप्रेशन आप नोटिस होता है वहाँ पर। अगर आप ढंग से सुनोगे ना तो एक्सप्रेशन अपने आप आएंगे। ये मुझे के सर ने सिखाया था। करेक्ट। वो जो आपसे निकले हुए अल्फाज निकलेगा ना, उस पे मेरा एक्सप्रेशन बनेगा, उस पे मेरा जो डायलॉग होगा ना वो कुछ अलग ही होगा। करेक्ट। वो के सर ने मुझे सिखाया था जब मैंने वाज डूइंग स्पेशल ऑप्स विद देम। तो ऐसे बहुत से मनोज से बात कर लो, आप किससे कर लो, इससे तो एंड यू ऑब्जर्व कि यार क्या कर रहा है जिससे मुझे कुछ अलग लग रहा है या अच्छा लग रहा है, वो ऑब्जर्व करना। कॉपी मत करो उसको, बट वो क्योंकि उसका फेस अलग है, आपका फेस अलग है, उसकी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, बट अच्छा इसने ये प्रोसेस अपनाया होगा। तो ऑब्जर्वेंट, और जब चोर होते हो ना आप तो बहुत जल्दी फटाफट सीखते हो। और शातिर चोर हो, क्योंकि आप मिमिक नहीं कर रहे हो। हाँ, मिमिक नहीं कर रहे हो, ले रहे हो, फिर अपने हिसाब से वो अपने आप से उसको तरीके से डाल रहा है। हाँ, इसकी आंखें कैसे मूव करती हैं, क्या मैं करके देखता हूँ। फिर जब तेरी आंखें मूव करेंगी, तेरी अपनी होंगी, अलग दिखेगा, मगर तुमने वो सीख मैं ऐसे नहीं करूंगा ना कि भाई अब मैंने संजीव कुमार साहब को देखा तो मैं नहीं करूंगा ना। करेक्ट। मैं कुछ और करूंगा शायद, बट व्हाई ही डिड इट, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। फिलहाल के लिए विजन एक्सप्रेस का एक कह सकते हैं आपकी राय, आपका फीडबैक जानना चाहेंगे आप ही के काम को लेकर। सो व्हाटएवर प्रोजेक्ट्स यू डन, इफ यू हैड टू, ये वैसी वाली बात है ना कि बच्चे को पूछा जाए कि आपको मम्मी ज्यादा पसंद है कि पापा वैसे, या फिर किसी को आपको पूछा जाए अगर आपको 2 बच्चे के आपको ये बच्चा पसंद है वैसी वाली, तो वैसी वाली चीजें हैं। बट ऑल्सो
आई डोंट वांट टू मेक इट अ रैपिड फायर शरद, इट्स अ वेरी हार्ट टू हार्ट चैट, तो आपको रुक के बताना भी है ना सोच कुछ के तो बताना। हाँ बताना, और आपको उस पे थोड़ा यू वांट टू शेड लाइट ऑन दोज एक्सपीरियंसेस व्हाटएवर। Done. वन ऑफ द फर्स्ट वंस फॉर मी वुड कम टू रामलीला या तानाजी, बिकॉज दोनों की अहमियत अलग है, बहुत अलग है, बट दोनों दूसरा बच्चा बुरा नहीं मानेगा। बुरा नहीं, दोनों की अहमियत बहुत अलग है, दोनों डिफरेंट है बहुत, बिकॉज आई टेल यू दोनों में डिफरेंस क्या, प्रोसेस में बताता हूँ क्या डिफरेंस है। तो रामलीला आई गेव ऑडिशन, करेक्ट, मेहनत की, बहुत अच्छा ऑडिशन लिया, मुझे पसंद किया ऑडिशन में, एंड देन संजय सर कॉल्ड मी फॉर द रोल। तो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो उतना जितना रोल ओरिजिनल स्क्रिप्ट में था वो उतना बड़ा हुआ नहीं, बट स्टिल आई गॉट लॉट ऑफ एक्कोलेट्स एंड लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दैट रोल, और अभी भी मिलते हैं, वो कांजी भाई बोलते हैं। तानाजी वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज जैसे तू जानता है कि मैं मुंबई से नहीं हूँ, मेरा शिक्षण मराठी मीडियम में नहीं है। ग्वालियर में बहुत मराठी बोलना मतलब बहुत महाराष्ट्रियन से, बट बोलता कोई नहीं है। हाँ. घर में जितना आई में ये तो है जातो इतना ही मराठी होता है। बीइंग कोकणस तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर है, बट फ्लुएंट नहीं है बिल्कुल भी, और अस्खलित जो बोलते लोग ही नहीं बोलते, तो हाँ अस्खलित नहीं है मराठी। हाँ. और मतलब आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर बिल्कुल भी जीरो है। मतलब वहाँ के लोगों को अस्खलित ये शब्द ही पता नहीं पता है, तो यहाँ के मैंने भी सीखा है। अच्छा, यू डिडंट नो? आई डिडंट नो, मेरे को वहाँ के पता, मेरे को क्या माझी मराठी अतिशय अस्खलित आहे, इज व्हाट आई ऑलवेज से दैट। नहीं, मेरे को नहीं पता है, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज आई हैवंट स्टडीड इन मराठी मीडियम, कोई किताब नहीं पढ़ी मराठी में। इनफैक्ट हिस्ट्री के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब हमारे लिए नज़दीकी झांसी की रानी है, हाँ, तात्या टोपे, ऐसे हाँ, वो भी नहीं है सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा। छत्रपति शिवाजी महाराज भी छोटा सा एक उनका है, जो हमारी प्रॉब्लम है हमारे मतलब एकेडमिक्स की, कि हमने एजुकेशन सिस्टम किया, जो सिलेबस बनाया गया है वो बहुत ही ट्वीक्ड है, या बोलो ट्वीक्ड है, इट्स करप्टेड है बहुत, अभी शायद चेंज कर रहे हैं, दैट्स गुड। तो कमिंग टू तानाजी, I was, there's no connection. I just did one film in Marathi, 2 films, Uttarayan and Lay Bhari. करेक्ट। उसके बाद कोई मराठी फिल्म मैंने की नहीं थी। And I was vacationing in Greece, and I got a call from and मुझे ओम राउत का मैसेज आया, I've been trying to call you, your phone is not reachable, so please call me back. ओम राउत को मैंने नाम सुना हुआ है, ये आई थिंक मैं एक अवार्ड में गया था, तो ही मेड तिड़क बनाई थी ना उन्होंने, लोकमान्य बनाई थी, कुछ तो बनाई थी, लोकमान्य बनाई थी। तो दैट टाइम आई जस्ट हर्ड कि ओम राउत ने लोकमान्य, बट मैं जानता नहीं था, नाइदर कोई कनेक्शन है मेरा। करेक्ट। आई सेड कि ओके, बोला कि आई एम मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड तानाजी, कैन यू कम एंड मीट? मैंने कहा ठीक है, मैं कल वापस आ रहा हूँ। सो वेयर टू कम? बोला कि फिल्मिस्तान स्टूडियो, एंड विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हाउस। मैं ठीक है, मैं लैंड करूँगा इतने बजे, मैं आता हूँ दोपहर तक। But he didn't tell you details. Nothing. कि क्या कर रहे हो? I went to the studio and he said कि I want you to play Chhatrapati Shivaji Maharaj. That was shocker for me. Shock of my life. कि whatever I heard about, और जो भी हमको हिस्ट्री बुक्स या जो भी हिस्टोरियंस ने लिखा है, उनकी जो फिजिकलिटी है या जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है, और जिन लोगों ने किया भी है उनका स्ट्रक्चर मेरे स्ट्रक्चर से बहुत मैच नहीं करता है। So I asked him कि सर why me? कोई भी आदमी पूछेगा, मैं मतलब एक तो इतनी बड़ी, आपने कैसे सोचा? कैसे मतलब? He said कि I want my king to be like this. And that statement really stuck me कि यार, yeah, what a vision this guy has यार, कि उसको मेरा राजा ऐसा होना चाहिए। प्रेजेंस, ऑरा, ये है, ये है। मेरे को खुद पे डाउट था। लेट विक्रम दादा was doing makeup and नचिकेत बर्वे वाज डूइंग कॉस्ट्यूम, सो बोला तुरंत एक लुक टेस्ट। मैंने कहा तुरंत मतलब अभी मैं लैंड करके आया हूं फिल्मिस्तान में, मीटिंग कर लेते हैं, आई कैन सी दैट, बट स्टिल मैं ऐसे फंगे टाइप गए थे अपन, तो टी शर्ट जीन्स पहन के, और मैं गया मेकअप रूम में, दादा ने मेकअप किया, एंड नोबडी कैन बीट हिम ना, विक्रम दादा तो मतलब ही वाज लाइक, तो बाएं हाथ का खेल था यार, मतलब आंख बंद करके भी मेकअप मैंने देखा, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, मेकअप किया उन्होंने, एंड जीरो टॉप मैं कॉस्ट्यूम पहना, नचिकेत ने कॉस्ट्यूम दिया, एंड मैं जीरो बाहर आया, एंड आई कुड सी एवरीवन, जो भी उस, क्योंकि इट वाज ऑल कवर्ड, करेक्ट, बिकॉज ओम का इंस्ट्रक्शन था, कोई मतलब बाहर का आदमी ना फोटोग्राफ ना कुछ ना, मैं सब मेकअप रूम से बाहर आया, एंड एवरीबडी, देयर वाज 15-20 गाइज वो स्टैंडिंग, शायद ब्रेक में बाहर आए होंगे, एंड दे वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी, वो सब देख रहे हैं, ऐसा किसी की ऐसा हो रहा है कि ऑटोमेटिक कोई ऐसा झुक रहे हैं, ऐसा कर रहा है। मैंने कहा हो क्या रहा है, बिकॉज वो सररियल एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि ये कैसे,
And then I have shared the experience कि मैं जब first day shoot पे गया, so we were shooting the last sequence of the film. On the When first day. Tanaji's son is getting married. Yeah. है ना? और उसमें एक तरफ से मैं पकड़ के पड़ा हूँ कपड़ा, दूसरी तरफ से वो सीक्वेंस चल रहा था. And he was getting married to a small girl. Correct? ऐसे ही है ना, एज कम एज की. That girl asked me, ऐसा hello, देख रही है मुझे बहुत देर से. मैंने कहा hi. Is that your statue at the airport? I said कि और ये एग्जाम पास हो गया. तो तानाजी is very very special. Means I can't compare any other film. Though they are very all films are because मैंने की ही इसलिए क्योंकि मुझे वो कहानी पसंद है. तो मैं पहले कहता हूँ, ये तो मैं करता नहीं. Correct. तो but तानाजी is something different in terms of working also ना. तानाजी में ऐसा हुआ है कि यार मुझे कुछ याद नहीं है फिल्म में मैंने कैसे काम किया. नॉर्मली आप जब कोई फिल्म करते हो ना आपको याद है कि वो सीन मैंने ऐसे किया था, उसका बैक थॉट ये था. मुझे तानाजी में कुछ याद नहीं है. कैसे ऐसे मगर पता नहीं क्या है. फिर वो तुम जोन में चले गए हो, जैसे कहते हैं ना विराट कोहली कभी भी कहता कि हाँ, जोन मुझे याद नहीं है कि मुझे हाँ कि तुमने बोलते मुझे कुछ याद नहीं है. इन द मोमेंट था. मुझे तानाजी का एक सीन का प्रेप मुझे ये याद है कि हमेशा ओम सीन के 15-20 मिनट में रहता था और कुछ तो भी कहानी सुनाता था मुझे उस टाइम की. महाराज के टाइम की. हाँ बस उतना ही. उसके बाद ब्लैंक है भाई. मेरे पास कुछ नहीं. मैंने ये कैसे एक्सप्रेशन दिया है, मेरा क्या था लुक, क्या nothing I remember. So will it be fair to say, Sharad, कि Tanaji is probably one of the most special projects and characters that you have I'd done? say it's a film for lifetime for me. I think it's. I think nothing You'll can always be, have a special place. Nothing in your can be. If I do something similar, which I'm planning, but otherwise that still date is a most special film. It's a different film for me. And तो रामलीला और तानाजी में से हम मान देते हैं तानाजी in this. Family man. Yes, special ops. Especially also because of the kind of characters and actors you worked with. Yeah, special ops was a very small role, but Family Man, yeah, it was again Raj and DK who saw me in a different light because before that, I was doing negative roles, and suddenly he offered me Arvind, and people loved Arvind, irrespective of your hero's wife is so-called having an affair with this guy, who normally people think he's a bad guy or he's a negative guy, but people loved me in Arvind's role. In fact, they were waiting in season 3, but नहीं हुआ है नहीं कुछ उस कैरेक्टर का आगे. अरविंद का कुछ मतलब है नहीं ना. है नहीं कुछ कल्पनेशन भी नहीं है तो नहीं है. But still, I am very happy that people loved Arvind. But talking about Raj DK also, I admire those guys because यार हर character they have a different vision altogether. They have a different story to tell. That's the best part. Also ना तुम उनके characters को label नहीं लगा सकते. बहुत ही organic. They write human characters. Recent वाले कुछ projects में से ना, I wanted to ask you something. चोर निकल के भागा is again something that I saw, and I know that it's a film and Taskari is not, but again between the two, Taskari, why? बहुत घूमने को मिला मुझे उसमें. ये तो फ्री वाली हॉलिडे वाली Outdoor बात है. बहुत कम मिलता है. And especially I'll tell you, Chor is also very good because it was my second with Amar and team. Chor 1 had a very limited scope for me as an actor. Whether in Taskari, nobody has shown a villain or a smuggler in this shade. Correct. Who's a family man, who is very quiet, who is very subtle, very different kind of. And because it's my third project with Neeraj sir, so now that tuning also. एक रैपो बन चुका है. वो क्या करना चाहते हैं, मुझे क्या करना है ना. वो आ जाता है. आपको उतना अच्छे से समझते हैं, आप भी उनको समझते हो, तो वो इजी पड़ जाता है. इजी पड़ जाता है. Also तस्करी में the brilliant thing about storytelling was and the styling. Exactly, and the styling of चौधरी बड़ा चौधरी वो कैसे बना, उसकी जो वो montages कटी है ना, वो बैक स्टोरी which is very interesting to show because उसके बाद जब आप आते हो स्क्रीन पे तो मैं हर बार वो रिलेट कर रहा हूँ, हर बार क्यों है ऐसा है, वो ऐसा क्यों है, बड़ा चौधरी छोटा बहुत कम होता है. हाँ बहुत कम. या तो आप पूरी एक पूरा लेंदी एपिसोड होता है किसी के ऊपर. पूरा एपिसोड नहीं दिखाया और वो 5-10 मिनट का मोंटाज है, यू अंडरस्टैंड हु इज ही. फट और अभी देखो इसको, और ये क्यों सडनली आप जब भी जो भी डायलॉग बोल रहे हो ना, आई एम लुकिंग एट इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट क्योंकि तुमने मुझे बता दिया कि ये यहाँ कैसे इंजीनियरिंग से यहाँ आके ऐसा हुआ क्यों हुआ. अच्छा एक But I want to mention one very interesting film which is very close to my heart, and I think the most difficult film I have done till date was Operation Romeo. If you have seen that. I have, again Neeraj sir's only. Neeraj sir's correct. Only. I spoke to. Shah directed it. Why do you think it didn't run? Because when Deven told me about the timing was like that, yeah, because it released in between KGF and all these films, and that particular time was very bad है, because उस वक्त इसकी भी फिल्म आई थी, शाहिद की भी फिल्म थी, which also didn't do well. वो भी नहीं चली थी.
अच्छा वो Because KGF was running throughout and was killing everyone. So timing was wrong. Then obviously यार to release a film ना और ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब क्या होगा चलेगी क्या picture. चलेगा But on OTT but in Netflix, I'll tell you, 2 years back I went to US and they in a group of people they was just talking about Operation Romeo. And whenever somebody talks, that 100% they talk about Operation Romeo. And why do you say it's special for you? It's a very different role यार, which क्या होता है as a human ना आपके पास अपनी लाइफ के रेफरेंसेस होते हैं बहुत सारे कि यार इस सिचुएशन मैंने ऐसा एक्ट किया था, इस सिचुएशन में ऐसा हुआ था. यू रिमेंबर ओल्ड थिंग्स, सपोज देयर इज अ इमोशनल सीन, सो आई विल रिमेंबर माय फादर और माय डॉटर, तो वो क्रिएट हो जाता है करेक्ट, तुम उसको लेके आ जाते एंगर हो तो आपको कोई अपना एक ऐसा सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर दिखता है या कोई डायरेक्टर दिखता है, तो आप वो या कोई एंगर बंदा दिखता है जिसकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं किया, तो वो आपको दिख जाता है, तो आपको गुस्सा वाला है. दिस कैरेक्टर वाज आई नेवर एक्सपीरियंस इन माय लाइफ कि मैं ऐसा हो सकता हूँ. ही इज सच अ लेच. वो इतना गंदा कैरेक्टर है ना वो. बट वो डिफिकल्ट भी रहा होगा बहुत इसीलिए मैं चैलेंजिंग. बता रहा हूँ, मैंने बताया था कि मैं चला गया नीरज सर के पास 5-6 दिन के बाद, मुझे बहुत खराब लग रहा है अंदर से. बहुत घिन आ रही है ऐसा. बोला अच्छा है, करते रहे ऐसे. सो इट्स आल्सो वैलिडेशन. अगर तुम्हें घिन आ रही है मतलब तुम वो बन चुके हो थोड़ा बहुत अंदर. हाँ मतलब वो एक फिल्म बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी मेरे, बिकॉज एक तो नाइट शूट से पूरी फिल्म एंड सच अ क्रीपी रोल. एंड फिल्म में ऐसा नहीं है कि इज टचिंग और इज डूइंग समथिंग, एक टच नहीं कर रहा है वो लड़की को यार, बट स्टिल पीपल कैन एक्सप्रेशन फील. आंखों में करेक्ट वो वही है ना यार कि रिएक्शन. और वो डिफिकल्ट है, मैं हूँ नहीं ऐसा. मैं हमेशा ऐसे वन वुमन मैन टाइप रहा हूँ लाइफ में, ऑल माय गर्लफ्रेंड्स ऑन डिफरेंट टाइम जोन ऑल टुगेदर. हाँ ये मैं भी कहता हूँ काफी बार, बट एनीवेज. बट वो ऐसा करना बड़ा मुश्किल था. टच मतलब ठीक है. अच्छा ग्वालियर या मुंबई? Yeah, I enjoyed Gwalior also a lot. My hostel life I enjoyed for 3 years. Mumbai is everyone Mumbai. loves Mumbai. But There's which no other, you have to choose, other no? city like But you Mumbai. have to choose Mumbai. There's no other city I think, the world? In the world, है I ना? think, where you feel it's home. सबको इनवाइट करती है, सबको एम्ब्रेस करती है, हर एक कल्चर को, हर मजहब को, हर बंदे को, हर बंदी को. मुंबई देने हर वाली, profession. मुंबई देने वाला शहर है. आपको लेना आना चाहिए. क्या लाइन है, वाह. आप लिखते भी हो मैंने सुना है. नहीं, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा. लिखते हैं आप. और वड़ा पाव तो खाया ही होगा, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया. पोहे भी खाए होंगे, ग्वालियर के पोहे भी खाए होंगे. मैं सब खाता हूँ. तो पोहे खाना है ग्वालियर के या वड़ा पाव? ग्वालियर के समोसे बहुत अच्छे हैं. तो ग्वालियर के समोसे या मुंबई का वड़ा पाव? सिंस यू ब्रॉट इट अप एज योर फेवरेट फूड इन ग्वालियर. समोसा मैं रोज नहीं खा सकता, तो इफ गिवन अ चॉइस कि एक बार तुझे खाना है तो समोसा आई थिंक आई. एंड स्टेपल डाइट करने तो वड़ा पाव खा सकते हो. हाँ जिंदगी पूरा वो फेस निकाल दिया वड़ा पाव. हाँ यार, जो भी स्ट्रगलर हो नहीं हो, इट्स अ फैंटास्टिक फास्ट फूड. इट्स वन ऑफ द, इट्स लाइक इंडियाज वर्जन ऑफ द बर्गर. या better than a burger. better than a burger, much healthier than burger. एक ना आपकी बीच में इंटरव्यू की क्लिप वायरल हुई थी शरद. तो मुझे सवाल तो करना है, मगर उसके पहले आई वांटेड टू जस्ट बिकॉज आई रिमेंबर्ड इट बिकॉज आई वाज फीलिंग सो प्राउड एट दैट टाइम, जब किसी जर्नलिस्ट ने आपको सवाल करते करते मेंशन कर दिया था कि आप शिवाजी महाराज का रोल कर रहे हैं, और आपने तुरंत उनको करेक्ट करके बोला छत्रपति शिवाजी महाराज. तो वो नेचुरली इतने, क्योंकि वो रिएक्शन इतनी क्विक आई ना, इट्स नॉट लाइक इट्स स्क्रिप्टेड कि यार प्लांट करेंगे, कुछ नहीं. एंड यू सेड इट सो रिस्पेक्टफुली. इट्स नॉट लाइक यू आर ट्राइंग टू से कि यार तूने, यू डिडंट टेक इट टू योर हार्ट इन अ सेंस कि तुम ऑफेंड हुए हो. तुम बोल रहे हो यार शायद आपको उसकी समझ ना हो या इल्म ना हो, बट मतलब देखो क्या है ना यार, मेरा ये मानना है कि अगर हम ये कंटिन्यू नहीं करेंगे ना, और हम मतलब एकेरी नाव जिससे बोलते हैं बुलाना शुरू कर देंगे लोगों को जो दे आर गॉड लाइक फिगर्स फॉर अस, करेक्ट, तो आगे की जनरेशन क्या करेगी? आई थिंक मुझे लगता है कि शायद जो हुआ, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस अगेन व्हाट यू सेड कि मैं कभी नहीं बोलता कि मतलब शिवाजी है ऐसा, तो अपन ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली यार छत्रपति शिवाजी महाराज. तो वैसे ही निकला वो मुझसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, डोंट कॉल ऐसा. बट मुझे लगता है कि कम से कम अगर मैंने ये बोला तो एटलीस्ट मैं दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करता, बट माई डॉटर विल से छत्रपति शिवाजी महाराज करेक्ट इन फ्यूचर, द वैल्यूज यू आर एंड शी विल मे बी इनकलकेट इन हर किड्स, और तो ये जनरेशन टू जनरेशन वो करेक्ट नाम पदवी के साथ रिस्पेक्ट बनी रहेगी.
और वो दैट इज द लीस्ट वी कैन डू ना Correct. यार, उतना सा तो करना है. हाँ मतलब कुछ हम बड़ा कुछ करने की बात भी नहीं कर रहे यार. यू जस्ट गिव दैट उतना ही है, उतना ही करना. और जी देखो पदवी क्या है दिली ना, आहे त्यांना, त्या पदवीने तुम्ही त्यांना बोलवलं जर नाही किंवा मैं इनफैक्ट आई टेल यू देयर इज महाराज का एक प्रतिमा का अनावरण था नागपुर के आगे. तो नागपुर के ना, नागपुर के आगे मैं जगह भूल गया. तो एमपी के सीएम थे उस समय शिवराज सिंह जी, वो आए हुए थे और मुझे बुलाया गया था. अनावरण हुआ, उसके बाद उनकी एक सभा थी. तो बोले चलिए आप चलिए. मैंने कहा सर मैं क्या करूँगा सभा में जाके. तो बोले चलिए चलिए आप एमपी के हैं चलिए. तो मैं गया तो मैंने कहा 50,000 लोग बैठे हैं सामने. ग्राउंड है, मैदान है. हाँ मतलब जो शेडेड एंड उनके पीछे ट्रॉलियाँ खड़ी हैं, ट्रैक्टर खड़े हैं, वो बैठे हुए लोग, वो 50,000 लोग. और मैं परेशान, मैंने कहा मुझे करना खड़ा कर देंगे बोलने के लिए. बट ही सेड कि आप प्लीज़ कुछ जाके बोलिए. सो आई सेड वन थिंग कि मैं जब मुंबई आया तो मुझे बहुत ऑड और शर्म सी फील होती थी कि मुझे महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं ज़्यादा. मैं उम्र के 30वें साल में पढ़ रहा हूँ महाराष्ट्र की हिस्ट्री, क्योंकि मैं एमपी में पढ़ाई की है. और छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के राजा करेक्ट, वो मराठा एम्पायर था. वो और मराठा- मराठा वो- एम्पायर की तुम वो लेगेसी पूरे देखो. भारत के रक्षक रहे हैं. Correct. करेक्ट. तो मैं ये चाहता था कि मैंने उनको बोला पब्लिकली, मैं चाहता हूँ कि चाहे वो एमपी की टेक्स्ट बुक हो, उसे एमपी की बात चल रही थी, चाहे गुजरात मध्य हो. प्रदेश की हो, तो आप टेक्स्ट बुक में एक आधे पेज का चैप्टर की जगह शायद एक में भी एक 15-20 पेज का आप पूरा एक बड़ा चैप्टर रखें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ताकि लोग उनके बारे में जाने और समझे कि वो कितने बड़े व्यक्ति थे. करेक्ट, बिकॉज आप अगर मराठा एम्पायर और जो शिवाजी महाराज की योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप सही बोल रहे हो, वो सिर्फ महाराष्ट्र से तक सीमित नहीं हो कैसे सकता. होता है? महाराष्ट्र तो बाद में हमने बनाया है. बता उनका जो मैं एम्पायर आपको बता था, रहा उनके हूँ जो ना, चाहे लोग वो थे. नॉर्थ से लेकर साउथ तक, करेक्ट. he traveled across the country. Yeah. He Administered, ruled. united everyone together. तो वो कैसे सिर्फ एक स्टेट के हो And सकते at its हैं? peak, the Maratha Empire stretched all the way till north, all the आप way till south. कर्नाटका जाओ, आप Correct, correct. तमिलनाडु जाओ, आप गुजरात ऊपर जाओ, आगरा राजस्थान जाओ, के आप- साइड, मध्य प्रदेश के ऊपर आप चले जाओ. उधर जाओ, आगरा तक जाओ, आप दिल्ली तक जाओ. मतलब सो आप ये उनको बाउंड कैसे कर दिया है कि आप क्योंकि वो मराठी लैंग्वेज की वजह से अब क्या हो गया, वो सर्कमस्टेंस. बट हिस्ट्री इज Exactly. नॉट अबाइड बाय अ लैंग्वेज. Exactly. अंडरस्टैंड. So Maharashtra should not only be taught करेक्ट. Maratha history. मराठा सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, आपको सारी टेक्स्ट बुक में अच्छा, मुगल हिस्ट्री सबको सिखाया है, तो मराठा हिस्ट्री भी सिखाओ. मेरा तो सिंपल रूल है. We'll end हर this. सवाल के एवज में एक फ्रेम मिलना चाहिए. हर सवाल के एवज में मुझे एक फ्रेम मिलना चाहिए. चलेगा. तो ये विजन एक्सप्रेस को बता ग्लासेस देते के हैं. साथ नंबर्स मेरे जो हैं उसके हाँ, साथ. मैं आपको विजन एक्सप्रेस के स्टोर पे ही लेके नहीं, मैं नहीं जाऊंगा. तो मैं एक काम वो करूं, उसको लेके आए. उनको बोलूंगा कि 15-20 फ्रेम लेके मेरे साथ चलो. वैसे चलो सेट पे मेरे. हाँ, सेट पे चलो, वो हाँ, पहन वहाँ के से दिखेंगे. वसूल करेंगे हम. वसूल करेंगे. तो पूरी ये बगैर ये तय है. मैं आई टेल विजन एक्सप्रेस वील गेट एन, बिकॉज मैंने पिछली बार भी लाया था, मगर मैंने खुद के लिए लाए थे. वही चीज मैं आपके सेट पे लेके आऊंगा एंड यू चूज व्हाटएवर यू वांट. Done. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इतना तो हम कर ही सकते हैं विजन एक्सप्रेस के लिए. एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विजन एक्सप्रेस भी हमारे हमारे गेस्ट के इतना लिए तो कर ही इतना सकता तो है. कर ही सकता है. I've seen you, Kirti and Keshan. I'm just coming back to family because that's something that we've spoken so much on professionalism, about the roles, about your films, about OTT, about television, your journey. As a family, when I see Kesha, and I've seen her from right from she was tiny at Hussein's house whenever we met. Where do you see the future going in terms of our kids, the generation? Because Kesha is, I think, 1 year older to Maisha. She's, I think, 11 or 12. I Kesha think. is 12. 12. So Maisha just turned 11 and a half. So they are in that generation where I sometimes get worried कि यार कहाँ जा रही है, मतलब life छोड़ के नहीं, if you यार- ask our parents, they're also thinking the same. कि गधे कहाँ जा रहे हैं लोग, क्या करेंगे लोग. नहीं, मुझे उनकी फिक्र नहीं है. I've seen her. She's well read. No, well read कुछ भी हो. दुनिया कहाँ जा रही है यार? दुनिया जहाँ देखो, हमारे पेरेंट्स भी सोचते दुनिया कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे क्या करेंगे. हम भी वही सोच रहे हैं. क्या होगा उनका So जीवन? it's a loop. You can't get out of that loop. आपको भी वही सोचना है As जो a आपके parent- पेरेंट्स सोच रहे होंगे. नहीं, और वो सोचना, मतलब मैं जानबूझ के सोच लाजमी नहीं है, रहा हूँ. लाजमी है, बिकॉज वो होता ही है वो यार. होगा ही ना. आपको अपने बच्चे देखो, सबसे अजीज आपको आपके बच्चे ही हैं. करेक्ट. आप वही सोचोगे, वही टेंशन लोगे, वही लोगे. The only thing which I feel that we need to change, and what I think my mother was quite forward in her thinking, that she gave choices to me. She trusted me blindly, and touch wood, matlab God made me so sane that I didn't disappointed her. Correct. In what
what I am today. You didn't let her down. Correct. And let her trust in you down. So okay. you give that much of trust in your Child. that वो automatically they will be on the right path. And also the upbringing matters. And once you, मतलब फिर उनकी जिंदगी है ना. यार देखो क्या है ना, संत के यहाँ भी चोर पैदा हो सकता है, चोर के यहाँ भी संत पैदा हो सकता है. So you never और know. एक लाइन, हाँ. कमाल. तो आपको नहीं पता है क्या होने वाला है. Correct. What you can do, you just do your job. Yeah. Again, intent. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, lot of people fight, but वो यार हम अपनी खुशी के लिए बच्चे पैदा करते हैं, करेक्ट. हमें मतलब एक वर्ड चुल, बच्चे पैदा, बच्चे चाहिए हमको, मजा आएगा लाइफ. हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी. मजा आएगा हमको यार, अच्छे होगा, खेलेंगे कूदेंगे, मजा आएगा बहुत लाइफ. हमने अपनी खुशी के लिए बच्चा पैदा किया, करेक्ट. तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. करेक्ट. जिम्मेदारी पूरी तरह से जब तक हम जिंदा है वो बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इरिस्पेक्टिव कि वो बड़ा हो गए करोड़पति बन जाए, लखपति बन जाए, बहुत अच्छा कर ले, बट स्टिल ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं उसको दुनिया में लाया हूँ, इसलिए करेक्ट. मैं कभी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता एज पेरेंट. करेक्ट. मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चे पे नहीं थोपूंगा, क्योंकि वो नहीं लाया ना हमको, हम लाए उसको इस दुनिया में. करेक्ट. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि मैं उसको मरते दम तक, अपने मरते दम तक मैं उसके लिए करूं. इसमें ये भी ना कर दो कि अपनी जिंदगी भूल जाओ ऑब्वियसली. सो But वो responsibility मैं याद उसके रखो. ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं This डालूंगा. is exactly what my mom says all the time. All the time. मैं कैशा से कोई उम्मीद नहीं करूंगा कि वो मेरे लिए ऐसा करेगी, ऐसे करेगी, बेटा पगार लेके आना. कुछ नहीं भाई, वो तुम्हारी लाइफ है. नाउ यू विल गेट मैरिड टुमारो, यू हैव might have your own kids. किड्स, आप उनके लिए करो. जब तक मैं हूँ, आपको मेरे से प्यार है, आपको जो करना है करो. वो हाँ. बट मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनूंगा कभी लाइफ में. मैं प्यार में आपसे कुछ ले सकता हूँ, बट मैं आपको दूंगा एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है लाइफ. बट समटाइम्स जैसे मैंने देखा है कभी कभी कुछ लोग ना शरद, हमने हमारे आसपास, आपने भी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड सर्टेन पीपल जहाँ पे द पेरेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ वट एवर, स्पेशली द फादर, आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स, द मेल इन द फैमिली, बुरी आदतों की वजह से या किसी भी कारणवश वो ना, त्याला म्हणतात ना मराठीत खचतो तो माणूस. तो का खचतो जीवनात, त्याच्याबरोबर असं काय होतं, आणि मग तो एकदा खचत चालला ना की मग ॲज अ टीनेज, आय हॅव सीन सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स व्हेन आय वॉज ग्रोइंग अप, ॲज अ टीनेज हैड अ पेरेंट हु वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मदर एंड ऑन द चाइल्ड, बिकॉज वो दारू पी रहे हैं, मिसट्रीट कर रहे हैं उनको. शायद कहीं, लाइक यू सेड अर्लियर, मैं उनकी नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ कि ये पैदा तो नहीं हुआ था ना दारू के ग्लास के साथ, कुछ तो इसकी ज़िंदगी में हुआ होगा कि जिसकी वजह से ये लत लग गई है, तंबाकू की लत लग गई है, खुद का क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्ही स्तंभ सारखे ना कड़क रहा, कारण जीवन तुम्हें टेस्ट करेगा. उस टेस्ट में तुम भले फेल हो गए, तुम्हें वापस उठना है, तुम्हें दारू की बोतल हाथ में लेके उस पर रिलाई नहीं करना, बिकॉज स्पेशली इफ यू हैव अ फैमिली. So when you see that, don't you feel bad about such people, and how do you then tackle those kind of, because I've had friends who've had parents, the single parents especially, 90% of the times it has been the father who becomes an alcoholic or who gets into something else. There are a couple of cases where they've also gone the distance and taken their own lives, and then the parent is the single parent, the mother, and the child is left alone because helpless feel करते हैं. बट वो कभी कभी यार जिंदगी आजमा लेती है यार लोगों को, और फिर ना वो बताओ बुरा क्या लगता है मुझे. ओके फाइन, ठीक है, इट्स अ failed person or it's a weak person I would call. I'm not a failed person. फेल तो सब होते हैं, क्योंकि इम्तिहान आप रोज दे रहे हो, फेल तो हो ही रहे सब फेल पास हो रहे हैं. आप कितने मजबूत हो, कितने वीक हो, वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है. करेक्ट. सो देयर आर कैरेक्टर्स हु आर वीक. करेक्ट. अब जो बच्चा है, जो इसने ये देखा है कि उसका फादर अगर वीक है और वो किसी हैबिट में फंस गया या वो शायद गुजर भी गया, एंड द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ व्हाट ही हैज लर्नड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट एज. हाँ, वो क्या सीख रहा है ना, वो आई थिंक उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा. वो क्या वही सीख रहा है जो उसके पिताजी ने किया, या वो बोला ये मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टू बी दैट स्ट्रॉन्ग मैन. तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जो चीज़ होती है ना, आई थिंक मैन माई फादर डिडंट हैव अ बैड हैबिट और समथिंग, ही वाज अ हार्ट इशू था, ही पास्ड अवे व्हेन आई वाज 16-17. बट from that day, within 1 or 2 years, I became a man from a boy. Yeah, you have to. And a responsible boy.
कि नहीं यार अभी माई फादर इज नो माई मदर इज वर्किंग बट स्टिल आई हैव नीड टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट एज अर्ली एज पॉसिबल. तो आप वो किस वे में, चाहे तो ये होता है कि बच्चा बिगड़ जाए, संगत बुरी हो जाए, बुरी संगत मिलती है आपको, आप क्या वो चुनते हो या नहीं. करेक्ट दैट डिफाइंस योर कैरेक्टर. तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मैंने बुरी आदतें नहीं देखी या खुद के अंदर नहीं थी, करेक्ट थी, बट हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर विद देम. आप उन आदतों को अपने ऊपर कितना हावी होने दे रहे हो. क्या वो शौक है या वो आपकी आदत है, क्या वो आपको कंट्रोल कर रहा है. डिफरेंस यहाँ पर शौक और आदत में फर्क होता है. देखिए शौक है वेरी गुड, आप शौक पूरा कर रहे हो, बट अगर वो आदत बन जाए आपकी, वो आप पे हावी हो जाए, देन इट्स अ प्रॉब्लम. देन तो वो आपको डिफाइन करता है. देन इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल बिकॉज़ देन इट टेक्स यू यू आर टेकिंग द सेम पाथ विद यू हैव सीन इन योर फ्रेंड्स फादर्स लाइफ और whoever else. करेक्ट. सो कहीं ना कहीं ना आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ योर ओन कैरेक्टर होना चाहिए कि मैं दूसरों दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ. तो वो बहुत ज़रूरी है. खुद खुश कैसे हो रहा हूँ मैं अच्छी चीज़ों से. शौक रखो यार, शौक किसी ने मना नहीं किया लाइफ में. मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि आपको शौक है, शौक पूरे करो सारे. यार आज घूमने में भी पैसे खर्च होते हैं. आप, मैं बता रहा हूँ, आप स्कीइंग कर रहे हो, पैर टूट गया आपका स्कीइंग में, तो नुकसान तो वहाँ भी है. हाँ, एक तो वेकेशन का वेकेशन हुआ, ऊपर से वो खर्चा हो गया, टांग टूट गई ऊपर से, वो ऊपर से अलग खर्चे हो. वो नेगेटिव होना आपके हाथ में नहीं हो सकता. एक्सीलेंस लाइक यू सेड, फेलियर रोज, हम इम्तिहान रोज दे रहे हैं. आप उसमें कितना मजबूत रहते हो ना, दैट इज वेरी. सम ऑफ द अदर टाइम एवरीवन इज गोइंग टू सक्सीड एंड टू फेल. या देखो क्या है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, मैं भी बोल रहा हूँ शायद कुछ प्रवचन जैसी बातें लोग सुनते हैं, मैं भी कई लोगों को सुनता हूँ प्रवचन, बहुत रोज सुनते हैं, बट वो अपने लाइफ में कितना उसको एब्जॉर्व करते हैं, उसके ऊपर कितना ऐड करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है. मैंने भलतों को देखा है, रोज सुबह 7 बजे उठ के किसी महाराज के प्रवचन सुनते हैं और फिर बट वो आदत से मजबूर है. नहीं, उसके बाद वो 7 से 8 बजे प्रवचन सुन रहे हैं, 9 बजे जैसी बाई आएगी ना, बाई की बाट लगा देंगे 2 बजे. सो व्हाट यू हियरिंग, आर यू इनकलकेटिंग, उसका कोई फायदा ही नहीं है. वो तो खाली आदत से मजबूर सुन रहे हो. मतलब तुम एक्ट करना बहुत जरूरी है उसकी. It has been one of the most endearing talks because it has been different from all my other episodes, which is what I strive to do. ऐसा है क्या बकवास कर ली मैंने. नहीं यार, एक तो ना तेरी आवाज इतनी बुलंद है. I also wanted to ask you one thing about your workouts because you've not stopped that. So if I had to just ask you about just your weakness, तो मेरी वीकनेस है, मैं बड़ा आलसी हूँ. उसका आलसी का भी रीजन क्या है, मैंने 2 साल जो जिम में नौकरी की ना, मैं परेशान हो गया. ये बॉडी के साथ आप कह रहे हो कि ये आपकी वीकनेस है. मेरी बॉडी कहाँ हो सकती है किसी को आइडिया नहीं है. माय ट्रेनर टेल्स मी पोटेंशियल किधर है, बोला कि आप सर करते नहीं हो, नहीं तो आप मतलब आपको पता ही नहीं है आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी मसल की मेमोरी क्या है. बट मैंने जब अप्रोच किया था, याद है, फिल्म के लिए, तभी मैंने बोला भी था तभी, एंड यू हैड सेड कि मुझे 2 महीने देना फिर तू देखना, बिकॉज़ आवर कैरेक्टर वाज दैट. वो मैं कर सकता हूं. कैरेक्टर वाज ऑफ महादेव आल्सो आई ट्रांसफॉर्मड इन 45 days. करेक्ट. For Taskari, I lost some 8-9 kgs in 1 month. So, understand, it's आप, मैं बोल रहा हूँ, इंसान सब कुछ कर सकता है. विल पावर, वो विल पावर कितना है, इंटेंट कितना है, विल कितना है ना, वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज सबसे आसान चीज़ है गिव अप करना, और आदमी मोस्टली वही चूज़ करता है क्योंकि सबसे आसान है. सबसे आसान है. तो और देखो, अपन बात करें, प्रवचन देना तो किसी को आए नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है बहुत. और ये ऐसी बातें हमने की हुई हैं, सिर्फ आज ऑन कैमरा कर रहे हैं. खाने में आपका व्हाट इज अ गो टू फूड, मैंने कहा फूड इज माय गो टू. मैंने ये बोला हुआ है. मतलब मेरा पॉइंट ये है, मैं कल भी मेरा दोस्त आया था, तू साले ये खा, मैंने कहा देख, मैं तू वो शाम को एक काम किया कर ना, खाना मत खाया कर, सूप पिया कर, ग्रिल्ड चिकन खा. मैंने कहा मैं लाइफ लॉन्ग ये फॉलो नहीं कर सकता, मैं वो फॉलो करूंगा जो मैं लाइफ लॉन्ग कर सकता हूँ. तो मेरे हिसाब से अगर मैं अगर शाही पनीर और नान खा रहा हूँ ना, मुझे खाना है, तो मैं 1/4 नान खाऊंगा और मैं इतना शाही पनीर खाऊंगा. दैट इज इनफ फॉर. मगर वो खाऊंगा, पर वो खाऊं इतने, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी कम कर दूंगा. करेक्ट. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, आई रिड्यूस माय क्वांटिटी टू अ सर्टेन लेवल, जिससे वो कैलोरी उतनी ही जाएंगी. करेक्ट. जब आप ओवर किसी चीज को भी ओवर करोगे तो मर जाओगे. करेक्ट. तो खाने का भी यही है, किसी भी चीज का. इफ यू लाइक अल्कोहल, आपको पीने का शौक है, आपको है अभी शौक, लिमिट में पियो. मेरा पॉइंट है. वर्कआउट ऑल्सो, आई टेल पीपल दैट डोंट डू ओवर वर्कआउट, डोंट डू, योर बॉडी डजंट नीड दैट. बट वो कॉन्सेंट्रेट अगर 30, 35, 40 मिनट्स और कंसिस्टेंटली करो, रोज करो. इनफैक्ट आई वाज टेलिंग माय डॉटर कैशा ऑल्सो कि आई एम नॉट सेइंग कि स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे और 2 hours एवरी सेकंड डे. आप 20 मिनट पढ़ो, आधा घंटा 20 मिनट पढ़ो रोज. लेकिन आप देखो डिफरेंस कितना है. करेक्ट. मुझे मैं जब छोटा था ना, जब मैं 5th, 6th, 7th ग्रेड में था ना, अब होमवर्क मिलता था.
ठीक है, अब लोगों की हैबिट क्या है, आप स्कूल जाते हो, सुबह 7:20 का स्कूल है आपका, स्कूल गए, लौट के आए, फिर मम्मी बिठा देंगी, ये सब बड़ा खाना खा लो, फिर होमवर्क करो, तब तो अंधेरा हो जाएगा, फिर मर गए, खेल ही नहीं पा रहे। व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 6, मैं आधे घंटे में होमवर्क करता था, रेडी था, स्कूल जाता, फिर पूरी दोपहर शाम मेरी है, खुद की है, जो करना है करो। मगर वो उसकी वजह से कि तुम सुबह उठ के कर चुके हो ना वो कर काम, चुके, आपने काम खत्म कर लिया, जो तुम्हारे डिलीवरेबल्स थे वो खत्म हो क्योंकि गए। मुझे पता है कि अगर मैं जो सुबह सुबह ताजे दिमाग से जो मैं आधे घंटे में करूंगा, शायद दोपहर को मुझे डेढ़ घंटा लग जाएगा करने में। इसीलिए मैंने आपको सुबह सुबह और बुलाया। सोने से पहले अगर मैं करने जाऊंगा तो और देर लगेगी, और देर लगेगी। खाना भूख लग रही होगी, नींद आ रही होगी, और वहाँ टीचर पढ़ा रहा है आपको। सो यू चूज योर वे, बट कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट। मेरा हमेशा है कि बॉस अपना रास्ता निकालो, कुछ हार्ड एंड फास्ट दुनिया में कोई रूल नहीं है कि मेरे को यही फॉलो करना है। आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अपने हिसाब से कंडीशन करो कि वो राइट वे में करेक्ट सपोर्ट करे। मेरे को अगर होता है कि लोगों को वो जो क्या बोलते हैं आजकल, कैसा फूड आता है वो, क्या बोलते हैं उसको, Organic? नहीं, सुपर फूड, हाँ सुपर फूड्स, शायद सूट करता हो, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा आदमी भुक्कड़ वो रोज जिंदगी भर वो खा पाएगा। मेरे को चाहिए एक दिन कुछ ऐसा छोले भटूरे। as long as you're controlling दैट डे सिटिंग एंड छोले भटूरे मैंने ऑर्डर किए थे। हाँ कितना भटूरा खाया होगा? आधा 4 भटूरा, आधा भटूरा खाया मैंने। हाँ आधा भटूरा खाया, मेरे को खा सकता था मैं 3, करेक्ट, मैंने आधा खाया और मेरा खा तो मजा आ कुछ गया 4 नहीं भाई। सकता है अगर के मजा आ गया भाई। मैं आलू बड़े खाता हूँ 8 एक बार में, बट मेरे को याद नहीं कि Last मैंने कब खाए कभी थे? नहीं खाया, बट मुझे याद नहीं कि मैंने आधा पराठा एक पराठा सुपर के खाया हो। मैं नहीं खाता हूँ, वही जबान को मिल गया ना, सुकून आ गया है। पेट को क्या को तकलीफ दे रहे हो इतना। पर आप आलसी होने के बावजूद मैं नहीं जाता मुझे, आप सुबह सुबह उठ के मेरे पॉडकास्ट पे आए हो, दोस्तों से तो कुछ भी कह सकता हूँ यार। बट आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय पहली गाली हार्ट। खाई है मैंने। मैं सुबह परसों मैं ऐसा लेट आया घर पे 2 बजे 2:30 बजे, और मैं सुबह 7 बजे क्रिकेट खेलने चला गया। मेरी बीवी बोल रही, कीर्ति बोल रही, तू कैसा आदमी है यार, तू क्रिकेट के लिए सुबह उठ जाता है और धूप में क्रिकेट खेल रहा है। मतलब यू हैव एक्चुअली गिवन मी अ कॉम्प्लीमेंट। आई एम धोनी रिसेंटली, एंड मैं बताया कि क्रिकेट आपको तो जानते हैं, ही ऑल्सो न्यू, मेरे बारे में जानता है। सो क्रिकेट की बात चल रही थी, बोला मैंने कहा यार अभी यार हाथ पे, बोला सर जब तक है ना खेल सकते हो ना खेलो। तो एक दिन वो आएगा जब आप खेलना चाहोगे लेकिन बॉडी बोलेगी अब आप खेल नहीं सकते। बट महेंद्र सिंह धोनी इज महेंद्र सिंह धोनी यार, हैट्स ऑफ टू दैट मैन यार। आदर्श है। मतलब and I think he's my age only, and and we won Nach Bali in 2006, then 2007 when I saw him win the World Cup, and the leadership qualities, मतलब क्या सिखा के गया है वो, ऐसी चीजें सिखा के गया है। वो क्रिकेट से ताल्लुक नहीं रखती, वो जिंदगी से ताल्लुक रखती है। अप्रोच क्या है, अप्रोच क्या है, and he's brilliant at Trust, it. Even today approach. यार, he's still playing this season also. बोला Dhoni's playing. मैंने जब तक बॉडी सपोर्ट करेगी ना मेरी, मैं खेलूंगा। बिकॉज He said that to यार you? हाँ, बोला कि यार देखो क्या है ना कि फिर खेलने का मन भी करेगा ना, तो नहीं खेल पाओगे। बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी मेरी। और वो लेवल पे खेल तो हम टर्फ बुक करके भी सकते ही हैं, बट वो नहीं है भाई। तुम सीएसके के मैं साथ आज खेल रहे हो। भी सीजन बॉल से प्रॉपर क्रिकेट आई नो आई अप्रिशिएट दैट। मैं- तुम लोगों का एक जो ग्रुप है आप लोगों भाई का, मैं बहुत टूर्नामेंट्स खेलता हूँ हर साल, और गाली भी खाता रहता हूँ क्योंकि मैं आती साल मेरे ये दुख रहा है वो दुख रहा होता है, बट मैं ठीक है, दैट्स माय पैशन है। Correct. अब वो देखो यही आदत, खेलना अच्छी आदत है, तकलीफ बॉडी को हो रही है, तो यू कांट कोरिलेट, बट उनको मेंटल तो पीस मिल रहा है ना उसमें खेलने जा रहे एक और पॉडकास्ट में आपके साथ करूंगा जरूर, जिसमें सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें होंगी, 100% आपके रोल की, बिकॉज आई नो द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव। बट तुम्हें डांस कब सिखा रहा होता, मेरे पैर चलते नहीं। जब भी 2-4 बार हमने कोशिश तो की है। मैं आपके क्या देखती पब्लिक बाय हर्षल कामत ये देखना चाहता है कि हर्षल को जल्दी से जल्दी हम वो डांसिंग शूज में देखना चाहते हैं प्रोफेशनली, जहां वो मेरे ऐसे नॉन डांसर को भी कोरियोग्राफ करे। बिकॉज नहीं, मेरे अंदर है डांस, बहुत निकलता है, मेरा गाड़ी में बहुत डांस निकलता है वो, लेकिन वो फ्लोर पे नहीं निकल पा फ्लोर रहा पे आप आइए, हम निकलवाएंगे तो आपसे। मैं चाहता हूं कि आप प्लीज वापस लौटें यस, और ज्यादा दिमाग ना लगाएं अपना, जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है आपके अंदर। जो आपको है, बट कभी कभी कुछ ज्यादा फहमी है आपको कि ये वो करेक्ट, कभी कभी थोड़े से बड़ों की बात सुननी चाहिए। थोड़े से बड़ों की। No, but he keeps explaining it to me. He keeps actually convincing me कि नहीं यार हर्षल, you have to go back. मैं उसमें भी कंसिस्टेंट हूँ कि मैं जब भी मिलेगा तो समझाऊंगा consistently. But yes, it is a customary hug out of immense gratitude अरे कैसी बात for Sharad. Thank you so much, yaar. Thank you. गॉड ब्लेस यू। क्या देखती पब्लिक, पावर्ड बाय विजन एक्सप्रेस।